Status of road safety in India demands undivided attention and collective action. India lost 1,72,000 lives on roads in 2023, which is 474 deaths every day and 20 lives lost every hour. Let's call out that we are failing. We have failed our nation, and it's the complete leadership, including me as a person. Actually, road crash is a health crisis. It's a public health crisis. Yeah. When WHO is taking this data from the health perspective, it was already 100% underreported. 2019, it was 1,50,000 deaths. It was already 3 lakh plus. We cannot copy something from Sweden or from any other country. हमारे पास 85% हमारे टू व्हीलर वाले हैं. हमारे पास स्लो मूविंग ट्रैफिक है. Trend shows only marginal increase, honestly speaking. Obviously, our target was to go 50% down. Number of vehicles are Net increased. zero. Nothing less than a national public movement will change this scenario. तो ये लोग ओवर स्पीडिंग क्यों करते हैं? मतलब what is the challenge? So crash research is the key, not speeding, just telling कि FIR में है तो यही हमें सॉल्व करना है. प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना है तो समाज, सरकार, बाजार को इकट्ठा होना पड़ेगा. Yes, समाज, सरकार, बाजार. क्या ये जो बिहेवियर का प्रॉब्लम है ये मेनली बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर या रोड के डिजाइन? बहुत बड़ी बात बोली आप. कहीं ना कहीं जो लीडरशिप प्रायोरिटी है हमारे देश की कैसे आएगी, इस पे हम सबको सोचना पड़ेगा. चैरिटी बिगिंस एट होम. लेट्स बी द चेंज. जब हम बदलेंगे तो देश बदलेगा. Welcome to the podcast today. Today I am going to discuss India's road safety crisis, why laws exist, death persists, and behavior still kills. Status of road safety in India demands undivided attention and collective action. India lost 1,72,000 lives on roads in 2023, which is 474 deaths every day and 20 lives lost every hour. But what's more shocking is that what generally we don't talk about. Today, we are going to decode the real numbers and the real reasons with Ramashankar Pandey. Mr. Pandey is one of the finest experts working on road safety for decades, and he's also one of the narrative builders. Welcome to the show, Mr. Thank you so much. Thank you so much for talking about a topic which is so passion-oriented for people and to save life in our country. Thank you so much. Yeah, because I have been observing, that's how I selected this topic. So since 1920, I have started observing about road safety, road accidents, policy making, etc. So I thought this is a very, very relevant topic and nobody better than you It's a can big address this contribution topic. because some of these narrative and discussion actually lead to action. So thank you so much for taking it up. And before coming and when I was preparing, I just looked at the data starting from 2019 to 2023. And if I look at two data points, one is the road accidents, second is the fatalities. So in road accidents in 2019, it was around 4.5 lakhs, which is currently in 2023 around 4.8 lakhs. And for road fatalities, from 1.5 lakhs to around 1.73 lakhs as per the latest report by Ministry of Road Transport and Highways. So many policy implementations and so many other things also happened. But what's your take on it? Why numbers are increasing, or whatever is the status of road safety in India? So of course, to be blunt, we should not, let's call out that we are failing. We have failed our nation, and it's the complete leadership, including me as a person, because I have been also working in this. I remember the Brasilia Declaration where we said we will reduce by 50%. Yes. I was in Sweden with a big team from India. Mr. Gadkari himself was there. And we said again, we shifted the target in 2020 because that was the 2020 target in Brasilia Declaration. Yeah. And now we said in Sweden that we'll again reduce by 50% by 2030. 2030 is the new target. आप तो 2019-20 से फॉलो कर रहे हैं, मैं तो 2008 से फॉलो कर रहा हूँ. It's very disappointing. So if you ask me, but there are two sides of this coin. First is you also have to understand there has been a data error as well. Because from where you get all this data? You get from the MORTH. Every year they give you a report, which is coming from the NCRB report, which is actually a police report. Yeah. Now, when police gives you a report with NCRB, you get a data. And if you look at from the health side, because actually road crash is a health crisis. It's a public health crisis. And it ends up to hospital. Whenever there is a crash, almost every crash ending up to some hospital and mostly in emergency.
Yeah. When WHO is taking this data from the health perspective, it was already 100% underreported. So it was double of. So if you say in few years back, it was 2019, it was 1,50,000 deaths. It was already 3 lakh plus. So when we say that every day, millions of us use road every day. Yeah. And as per this data, we say 474 people does not come back home day after day, every day. Such a alarming, level of, every day morning people start to go to their offices and work. Who is on the road? People who are working, studying, whatever. And 474 families does not get back their people home. Imagine their plight. And now what I'm telling you is that the WHO data was more than 800 every day. So if you calculate that way, this data might go to the level of 2.5 to 3 lakhs if that was the real data. So I don't have any authority to tell which data is correct. Yes. I only know there is an inconsistency in data. Yeah. WHO data was different, NCRB data was different, and it might be that in reality, we might see some lower number of deaths in some sector, some segment. Okay. For example, if you look at the cars, we have done a good job by increasing the safety of the vehicle. Right. At least the inside vehicle, those who are inside the car. And there you will see that the graph has come down. So if you go and slice and dice the data. Right. But at the same time, the vulnerable road user have gone up. Now, trends you can study from this data, but you can't conclude what happened. My take is, I told this after Sweden also, because no one would like to change this target so much, अब 2020 में नहीं कर पाए, अब 10 साल और आगे. It's an urgent topic. Ask those people who are the victim of this. Right. Many innocent people, wrong side driving कर रहा है उसको मार देते हैं. तो उनके लिए ये टारगेट चेंज करना 10 साल और आगे बर्दाश्त के बाहर है. वैसे गडकरी जी ने आते ही बोला कि हम 2026 तक कर लेंगे. अब मुझे याद आ रहा है, आज मैं जैसे बात कर रहा हूँ मुझे याद आ रहा है 2026 आ गया और ये ऊपर चला गया. डेटा इज ओनली गोइंग अप. सो कहीं ना कहीं मैं हमेशा ही बोलता हूँ, या तो वी आर एट द पॉइंट ऑफ सम काइंड ऑफ इन्फेक्शन पॉइंट कि हमें लार्ज रिडक्शन दिखने वाला है. मुझे ऐसा लगता है, बहुत मेहनत की है हम लोगों ने, या हम सब कुछ गलत कर रहे हैं. कुछ तो या तो सिस्टमेटिक एरर है कुछ हमारे काम करने के तरीके में. जो मैं साइंटिफिक कम्युनिटी के बीच में जब मैं बैठता हूँ, उनके बीच में जब मैं टेक्निकल स्टडी के ऊपर कुछ समझता हूँ, एज ए स्टूडेंट ऑफ रोड सेफ्टी, you ask me, I will tell yes, probably we are getting it all wrong. If you ask me as the leadership of a industry, I think हमने क्या नहीं किया सेफ्टी स्टैंडर्ड का. आप देख ही रहे हो. Right. हर तरह का सेफ. अब तो एनकैप आ गया. अब हम लोग बात कर रहे हैं कि we will have the V2V and V2X communication. We can make a digital twinning of our traffic. Right. So if you ask me as an industry leader, I think that we are very close to cracking it. But if you ask me, a student of road safety, starting with Professor Dinesh Mohan, he is no more now. But जब मैं IIT दिल्ली में वहाँ बैठता था उनके, मैं चला जाता था ऐसे ही शाम को. मुझे बड़ा क्यूरियोसिटी होता था, ऐसा क्या करें कि 50% डेथ कम हो. Lot of noise around road safety. It's not a phase 3 topic. It's a serious topic, right? Yeah. So it's beyond business. So forget about our job in auto industry. मैं जाके बैठता था और सीखने की कोशिश करता था. मुझे एज ए स्टूडेंट ऐसा लगता है कि हम कुछ तो बड़ा गलत कर रहे हैं. So maybe I will try to even take some action on that. Otherwise, I feel myself internally very guilty. बहुत सारे लोग जब मिलते हैं, बात करते हैं हम लोग, तो लोगों की ना उम्मीदें बढ़ जाती है. पांडे जी, आप तो इतना मेहनत किए, आप तो कन्याकुमारी से कश्मीर पैदल चले. हमें लगता है कि आप कुछ कर सकते हैं. और मुझे डर लगता है अंदर से, जब मैं सोचता हूँ यार मैं किसी नॉर्मल रोड यूजर से ज्यादा ज्ञानी थोड़ी ना हूँ. एंड रोड क्रैश इज ए कॉम्प्लेक्स साइंस. And our country is different. We cannot copy something from Sweden or from any other country. हमारे पास 85% हमारे टू व्हीलर वाले हैं. हमारे पास स्लो मूविंग ट्रैफिक है. और इंडियंस आर डिफरेंट. इंडियंस वी आर नॉट नेचुरली लॉ अबाइडिंग. हमें जब तक बोलते हैं ना किसी को जानना से हम अवॉइड नहीं करते हैं, हमें मानना पड़ेगा. तो हम ये मानते ही नहीं हैं. आई ऑलवेज से दैट हमारे यहाँ रोड क्रैश को लोग साइंस नहीं मानते हैं, इसको एक्ट ऑफ गॉड मानते हैं, इसको बैड लक मानते हैं.
अगर ऐसा नहीं होता तो हम नींबू मिर्ची लगाते हैं, हम बिल्ली अगर रास्ता काट दे काली बिल्ली, अरे रुक जाओ, राइट तो राइट हम रुक जाते हैं, भले हम रेड लाइट पे रुके ना रुकें, जेब्रा क्रॉसिंग पे रुके ना रुकें, पेडेस्ट्रियन को देके रुके ना रुकें। तो कहीं ना कहीं हमारे जब भी हम गाड़ी खरीदते हैं तो सबसे पहले मंदिर गए, मस्जिद गए, हम वहाँ पे उसको एक वो समझते हैं कि यार रिस्क तो है, राइट पर रिस्क का जो काउंटर मेजर है वो साइंटिफिक ना करके, सिस्टम पे थोड़ा ट्रस्ट कम ट्रस्ट होता है, कम तो है, साइंस पे कम है, ट्रस्ट दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाता है। दूसरी तरफ ज्यादा। आप सोचो ना, घर में भी सब बोलता है, क्योंकि रोड पे इतने लोग मर चुके हैं कि हर घर में उसकी बुरी यादें हैं। मेरे एक नाना के ब्रदर या बनो लगेंगे, उनका डेथ हो गया था रिक्शे पे पीछे से, बचपन की मैं बात बताता हूँ। राइट राइट तो घर में उसका ट्रॉमा हमेशा रहा, हमेशा रहेगा। तो सबको डर रहता है, और इसी कारण से लोग थोड़ा सुपरस्टिशियस भी हो जाते हैं, बोलते हैं दूध पी के मत चलो, करेक्ट करेक्ट तेल मत देख के चलो, क्या क्या तो है, बहुत सारी दिशाशूल और क्या क्या सुपरस्टिशन, इतना सारा कुछ है कि मैं क्या बताऊं। और उसको तब मुझे लगता है कि यार साइंस पे अगर भरोसा नहीं है तो इंडियंस आर डिफरेंट। करेक्ट, तो ऐसे केस में हमारा तरीका भी कुछ अलग होना चाहिए, तरीका अलग होना चाहिए सर, तो बिकॉज वो चेंज करना डिफिकल्ट है। दैट इज व्हाई आई फील लिटिल गिल्टी। और मुझे लगता है कि यार हमसे ज्यादा होशियार तो वो बंदा है जो सड़क के ऊपर ज्यादा देर गाड़ी चला रहा है, तो आखिर वो सीट बेल्ट क्यों नहीं पहन रहा है। मेरा ये बड़ा ये रहता है, आखिर वो हेलमेट क्यों नहीं लगा रहा है। जैसे आपने अभी कहा कि आपने जो प्लेज लिया इस रोड सेफ्टी मंथ में, और अचानक से आपने कहा कि उसके बाद से मैं हेलमेट पहन ही रहा हूँ। मेरी वाइफ को मैंने बोला, और वो सीट बेल्ट ऐसे पहले थोड़ा इग्नोर होता था, मसल मेमोरी तो आता नहीं है इंडिया में Right, इसके right. बारे में, तो वो भी बदल गई। वो भी हो गया। तो मुझे आज तो लगता है क्या इससे बदलाव आएगा। तो आई एम लिटिल बिट इन अ क्रॉस रोड कि आप जो नंबर दे रहे हैं ये डरावना नंबर है, क्योंकि ये बढ़ता ही जा रहा है। तो कहाँ हैं हम, या तो हम क्रैक कर लिए, बस वेट कर रहे हैं उस पॉइंट का कि स्केल पे ये दिखेगा, या गलती दिशा में हम स्पीड से जा रहे हैं। हाँ, मतलब दोनों हो सकता है, बट आई थिंक हम अंडरमाइन नहीं कर सकते वट एवर हमने जो एफर्ट किया है एंड वट एवर रिजल्ट्स वी आर अचीविंग। क्योंकि अगर आप पास्ट एक डिकेड का डेटा देखते हैं, इन ऑर्डर टू इवन इफ वी टेक दिस स्टैटिस्टिक्स एज अ वेरी करेक्ट स्टैटिस्टिक्स, तो भी the trend shows only marginal increase, honestly speaking. Obviously, our target was to go 50% down. Number of vehicles have Net increased, zero. Number of roads have increased. yes, number of vehicles have increased. Number of expressways, highways, rural roads, everything has massively increased in last 10-15 years. तो उसको 1.5, so I used to talk about like it's a standard thing, 5 lakh accident and 1.5 lakh fatalities. तो उसको consistent रखना, I think with the current efforts, अगर आप पॉलिसी की तरफ से देखेंगे, फॉर एग्जांपल हमने मोटर व्हीकल एक्ट को अमेंड किया, विच वाज एनीवे बहुत बड़ा टास्क था, और हमने 4 E's ऑफ रोड सेफ्टी पे काम किया, हमने उसके ऊपर बहुत सारे एक्टिव सेफ्टी, फॉर एग्जांपल व्हेन गडकरी जी केम एंड बिकेम अ मिनिस्टर, ही and Mr. Damle used to be the joint secretary that time, and they were very strict about bringing those 5 standards. Yes. वो standards आए, implement हुए, जो सालों से नहीं हो रहे थे। व्हीकल स्टैंडर्ड में बहुत काम हुआ है। Yes. आप WHO का डेटा देख लीजिए, वी आर एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, Yes. नो डाउट अबाउट। करेक्ट, तो उसको कंसिस्टेंट रखा है, तो भी दैट इज आल्सो अ रे ऑफ होप अकॉर्डिंग। नहीं, कुछ बहुत अच्छी चीजें हुई है। आप देखो, इवन सी टाइम लगा है इसमें, से हमारा देश बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। और दूसरा क्या ना, एक दुख की बात है, मैं बताऊं क्यों इतना दिक्कत हो रहा है। ये हो जाता जब फर्स्ट बिल हम लोग लेके आ रहे थे ना, जब हमारा देश रोड सेफ्टी पे पहला बिल ला रहा था, दैट वाज वंडरफुल बिल। आज भी आप उस बिल को जाके था वो बिल सर, मैंने देखा। आई थिंक मुझे याद आ रहा है, हम लोग लॉन्ग बैक, ये बात होगा 2019 में आया ना दूसरा वाला बिल, 2017। तो ये 2014 में काम शुरू हुआ था, मुंडे जी का डेथ हुआ था ना, जो मुझे याद आ रहा है। सो दैट अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट विच हैपेंड, आई थिंक जोल्टेड एवरीबॉडी। और बीजेपी से सरकार में आई थी उस समय, हाँ, मुझे और मंत्री जी आए थे, बहुत याद है। हाँ, जस्ट ट्राई टू रीड। उस समय बंदोपाध्याय जी हुआ करते थे JS, और मुझे अभी भी याद है थे वो बाद में। हाँ, तो उनके साथ इनफैक्ट नेट्रिप में भी आए उस समय। देखिए नेट्रिप पे भी बहुत काम हुआ था, तो एक अच्छा बिल बना था विच वॉज द बेस्ट प्रैक्टिसेस फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब। उसके अंदर 2 बहुत अच्छी चीजें थी। एक तो उसमें अच्छी चीज थी कि हम नेशनल रोड सेफ्टी अथॉरिटी की बात कर रहे हैं, बिकॉज आप मानो या ना मानो, एक चीज तो आज भी मैं एग्री नहीं करता हूँ, जो कि देखो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। मंत्री जी अपने पैशन से कर रहे हैं,
बट मंत्री जी का एक बड़ा अकाउंटेबिलिटी रोड बिल्ड करना भी है। राइट। तो उनको दोनों के बीच में इट्स लाइक क्या बताएं, मतलब बड़ा ट्रेड ऑफ एक तरह का है। आपको रोड भी चाहिए, तो जो आज जिस तरह की रोड बन रही है, आप एकदम से उसको स्ट्रिक्टली अगर करना चाहेंगे, उतने सेफ्टी प्रोफेशनल ही कंट्री में नहीं है जो उसको ऑडिट कर सकें। तो हमेशा आप देखो मंत्री जी का जो लास्ट 3-4 साल में, मैं भी जैसे फिकी में चेयरमैन हूँ रोड सेफ्टी का, तो जब भी आते हैं 2 चीज वो बोलते हैं मैं कैसे इनको FIR कराऊं जो गलत डिजाइन बना रहे हैं, कैसे इनको सजा दूं कि ये गलत हो रहा है। तो उनका जो एक मुख्य रूप से उनकी जो बजट आ रही है वो जा रही है बिल्डिंग द रोड्स। आपको पता नहीं, इस बजट में भी 400 करोड़ केवल आपके रोड सेफ्टी के ऊपर है, और ये लाख करोड़ है सड़क बनाने का बजट। तो आपका ज्यादा जो आपका डिपार्टमेंट है कहाँ लगेगा, वहां लगेगा। तो उस बिल में बड़ी अच्छी एक बात थी, मतलब मंत्री जी को हैट्स ऑफ करेंगे कि कितनी विजनरी था वो। नेशनल रोड सेफ्टी अथॉरिटी की बात हुई थी, विच विल बी एम्पावर्ड। उसका एक ही मैंडेट होगा, रोड डेथ को कम करना, रोड क्रैश को कम करना। आप इमेजिन कीजिए अगर वो बिल पास हो गया होता, तो RTO जो है वो ट्रांसपोर्ट के लिए, पर रोड सेफ्टी के लिए आपकी कोई ऑफिस नहीं है इंडिया के अंदर। राइट। तो एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म आता, अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाया। उसका भी कारण दुख की बात यह है, हम कहाँ रुक जाते हैं और कहाँ हमारे मंत्री जी को भी दिक्कत आ रही है, ये कंकरेंट लिस्ट में है। तो अगर आपने कुछ पास भी करा लिया पार्लियामेंट में, आखिर स्टेट गवर्नमेंट्स में उनको भी तो ध्यान देना पड़ेगा। तो हमें कहीं ना कहीं लगता है कि हमें इसमें पूरे देश को इकट्ठा करना पड़ेगा। अदरवाइज आप बोले काम तो बहुत हुआ है। आप आज देखो हमारा राहवीर आ गया, राहवीर इमरजेंसी केयर के कारण जो लोग मर रहे हैं 50,000, तो वहीं से जान बच जाएगी। सीधा मैथमेटिक्स बड़ा क्लियर है। उनको अगर हम हॉस्पिटल टाइम से ले गए और सही तरीके से ले गए तो 50,000 लोग बच जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली ये सब इकट्ठा होके जो करने की बात है, इकट्ठा होने में दिक्कत आ रही है सबको। इट हैज टू बी अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके लोगों। आप ये सोचो कि हमने मेंटेन तो किया एक 70 एक 80 पे, आपने कहा अच्छा काम हुआ है क्योंकि गाड़ियां ज्यादा हुई है, रोड ज्यादा बने, लेकिन आप उनके बारे में सोचो जो फिर भी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल इसमें तो कंप्रोमाइज नहीं कर सकते ना, हमें तो विजन 0 लेके चलना पड़ेगा। विजन 0। तो कहीं ना कहीं ये जो स्ट्रक्चरल इशू है, 2 चीज उस बिल में था, एक अथॉरिटी का और दूसरा नेशनल सेफ्टी पेट्रोल। हमें एक ऐसी कैडर बनानी थी। आज आपका पुलिस का ही कैडर ट्रैफिक पुलिस है, 86 से 87 हजार केवल ट्रैफिक पुलिस है, जो बिलियन प्लस इंडियन को कंट्रोल करे, कैसे कर लेगा? तो आपका इन्फोर्समेंट जो है, ऑल ऑफ अस एग्रीज, इन्फोर्समेंट इज फेलिंग। राइट। तो अगर इन्फोर्समेंट फेल करेगा तो आप रेगुलेट करके भी क्या करोगे? तो आपने कहा हमने रेगुलेशन अच्छी लाई। मेरा ये समझदारी है, इतने समय से 2 डिकेड से मैं काम कर रहा हूँ, अगर आप रेगुलेशन करते हैं और इन्फोर्समेंट की आपकी काबिलियत नहीं है, तो ये आपका एक फॉल्स फीलिंग आएगा कि आप कुछ कर रहे हो। क्योंकि रेगुलेशन मल्टीप्लाइड बाय एनफोर्समेंट हैज टू बी इफेक्टिव आउटकम। सो एनफोर्समेंट अगर 0 हो गया तो सब कुछ 0 है। यहाँ पे हम मार खा रहे। राइट। अब आई थिंक ये स्टोरी बड़ी इम्पोर्टेंट है। जब 2014 के पहले वाले डिकेड में, मे बी आई मे बी रॉन्ग, बट रोड सेफ्टी इतना सीरियस टॉपिक नहीं था। It was not into a public discussion, नैरेटिव नहीं था। मैं 2008-9 में जब काम करना शुरू किया, 2010-11 में हमने अपनी कंपनी की नींव रखी रोड सेफ्टी। राइट। एंड व्हेन दिस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हैपेंड, when late Mr. मुंडे का जो इंसिडेंट हुआ था, मैं गया था स्पॉट पे, मुझे याद है। And he was supposed to be, I think, one of the big portfolio minister. Yes. And then the current minister took it very seriously. नहीं, हमारे गडकरी जी का खुद भी तो एक्सीडेंट हुआ है। सी 15, 16, 17 फिर तो जब वो आया तभी से आई थिंक ये कोइंसिडेंस है कि उस समय मुंडे जी का डेथ हुआ। बट मुझे ऐसा लगता है कि जब ये नई सरकार आई और मंत्री जी इसको बड़ा सीरियसली ली, अभी भी आप देखो उनको, वो कितने रुआंसू हो जाते हैं इस टॉपिक पे। कौन मंत्री बोलेगा कि मैं फेल कर गया? कुछ तो ये दिल की बात है, दिमाग की बात नहीं है, ये पॉलिटिक्स की बात है ही नहीं। ये वाला जो बिल था सर, व्हाई इट डिड नॉट कम? क्योंकि मुझे याद है आया था, फेल कर उसमें, वी हैड टू टेक इट बैक। अब पढ़ना इसका। हाँ, वो बेसिकली आया एंड देखो उसको सपोर्ट करने में समस्या ये था, आप जीएसटी जब देखो, जीएसटी का पूरा देखो क्या था। जीएसटी इज ऑल्सो अ वेरी बिग रिफॉर्म, इसमें सबने सपोर्ट किया। अगर स्टेट गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करता, जेटली जी ने सबको मिलाया, यू नीड समबडी हु इज लाइक बाई पार्टीजन, जो पॉलिटिक्स से ऊपर सबको इकट्ठा लाना पड़ेगा इस पे। हमें
सारे राज्य को अलग अलग दल के लोगों को लेके आना पड़ेगा साथ में, कि कहीं ना कहीं साइंटिफिकली अगर करना है। राइट तो दिक्कत ये है कि जैसे ही आप ऐसा करेंगे, क्योंकि कंकरेंट लिस्ट में है, हम लोग वी आर ए फेडरल डेमोक्रेसी, तो अगर स्टेट को ये लगेगा कि आप उनके राइट पे इंक्रोच कर रहे हैं, तो वो क्यों मानेंगे? तो आपका भले लोकसभा और राज्यसभा हमारे, यू नो हाउ वी वर्क, आवर डेमोक्रेसी हैज ए वेरी पिकुलियर एंड वेरी, यू नो, बड़ा सिक्योर्ड है, बड़ा सेफ हमारा डेमोक्रेसी है। तो उसमें बिना राज्य के हम नहीं कर सकते। तो राज्य को आना पड़ेगा, राज्य को ये समझना पड़ेगा कि भाई ये उनके, हमारे इंडियंस मर रहे हैं इसमें, राइट यू नो, और तब जाके ये आएगा। लेकिन सेंसिटिव टॉपिक है। आप ये सोचो, रोड कितना सेंसिटिव टॉपिक है, गाड़ी कितना सेंसिटिव टॉपिक है, रोड टैक्स कितना सेंसिटिव टॉपिक है। ये बहुत बड़ा रेवेन्यू है, और रेवेन्यू के अलावा आपको पता है कुछ और भी रेवेन्यू है बहुत सारे लोगों का। राइट तो ये पॉलिटिकली सेंसिटिव टॉपिक है, तभी वो नहीं हो पाया। बट मुझे उम्मीद है कि जैसे जीएसटी आज नहीं तो कल आया ही हमारे देश में, वैसे ही इसके ऊपर अगर जीएसटी के तर्ज पे ये हो जाए कि देश में ये, अगर एक बात आप बताओ, सरकार अगर चाहे कि 100% लोग हेलमेट पहने, तो आपको लगता है कि लोग नहीं पहनेंगे? बिल्कुल पहनेंगे। भाई कोविड में मास्क लगाया ना लोगों ने। 100%। ये लीडरशिप की रिजॉल्व है, पॉलिटिकल प्रायोरिटी अगर होगी, स्टेट और सेंटर एक हो जाएगा, हमारा देश अगर एक हो गया तो इन्फोर्समेंट हो जाएगा। शुरुआत 2-4 चीजों से ही करें। अब आप देखो, दिल्ली में बात हो रही है रॉन्ग साइड में एफआईआर करेंगे, इसलिए हो रहा है कि उस बंदे को पिन दिया जाए, और ताकि भाई ये तो जुर्म है, रॉन्ग साइड ड्राइव करना। इट्स लाइक अ बॉम्ब, इट्स लाइक अ, बोलते हैं ना, एक गोली आप गलत दिशा में चला रहे हैं। तो अगर पूरा देश एक हो जाए, बोले रॉन्ग साइड ड्राइविंग बंद, मतलब आज से बंद, इतनी ज्यादा स्टेट का पावर होता है कि वो इन्फोर्स कर सकता है। वो एजुकेशन और अवेयरनेस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सर। फॉर एग्जाम्पल, आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल। जैसे हमारा स्वच्छ भारत मिशन आया, so in every discussion, every speech, everywhere it was talked about, है ना, clean India, स्वच्छ भारत। और can you imagine the change? Yes. I mean, yes. I never so imagined. I think this is a very good example of our country. In a federal democracy, this is a great example of Niti Aayog, what they have started. I think there's something to really applaud, is the competitive federal mechanism. आप सारे स्टेट को, जैसे इन्वेस्ट इंडिया है, इसी तरह से इन्वेस्ट गुजरात है, इन्वेस्ट बिहार है, इन्वेस्ट महाराष्ट्र है, हो क्या रहा है कि हर स्टेट compete करें, और उनकी लिस्टिंग कीजिए, इनोवेशन इंडेक्स पे कीजिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे कीजिए। ये बड़ी अच्छी शुरुआत हुई है। अगर रोड सेफ्टी में भी ऐसा कुछ हो जाए, आज है रोड सेफ्टी में आज कहाँ ज्यादा लोग मर रहे हैं, उसकी रैंकिंग है अपनी वेबसाइट पे। बट ये तो एक सेमिंग हो गया, नेमिंग नहीं हुआ। नेमिंग के ऊपर रोड सेफ्टी मंथ हम करते हैं, उसमें मंत्री जी और मंत्रालय कुछ अवार्ड्स देते हैं, पर मुझे लगता है इससे ज्यादा डीपर कुछ करना पड़ेगा। जैसे स्वच्छता अभियान एक नेशनल अभियान बन के आया, आई एम विथ यू, नथिंग लेस देन ए नेशनल पब्लिक मूवमेंट विल चेंज दिस सिनेरियो। यहीं से बिल्ड करते हैं सर। आपके बाद बहुत सारे एक्सपर्ट से बात करते हैं ऑन दिस टॉपिक। एनीवेज, हम रीजंस की बात करते हैं। रोड एक्सीडेंट्स के रीजंस क्या हैं? आई थिंक आपने, यू हैव ऑलरेडी पॉइंटेड आउट सम ऑफ देम। वन इज लाइक ओवर स्पीडिंग, सेकेंड इज ड्रिंक एंड ड्राइव, थर्ड इज रेड लाइट जंपिंग, और फोर्थ में आपका आता है हेलमेट का कंप्लायंस नहीं है। सो इस तरह के कुछ 4-5 रीजंस हैं। रेड लाइट जंपिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द की रीजंस। द टॉप वन इज ओवर स्पीडिंग। 68.1% as per the data is like from fatalities are coming from 68.1% fatalities are because of over speeding, and 68.4 is percent of the accidents are because of over speeding. तो ये लोग ओवर स्पीडिंग क्यों करते हैं? मतलब व्हाट इज द चैलेंज? So I'll tell you 3 things because we are going little deeper. I really like your approach. We are not on the surface. First is ये जो फिजिक्स का, अभी मैं भी इंजीनियरिंग किया हूँ, आप भी जानते हैं, फिजिक्स क्या बोलता है कि जब दो चीज टकराएगा तो जो मोमेंटम है, दैट मोमेंटम हैज टू बी एब्जॉर्ब। राइट। तो ये जो सबसे पहली बात कि हम जब भी रोड क्रैश की बात कर रहे हैं, मैं रोड क्रैश इसलिए ज्यादा बोलता हूँ, रोड एक्सीडेंट नहीं बोलता हूँ, क्योंकि ये एक्सीडेंट है नहीं। एक्सीडेंट तब होता है जब आपके हाथ में ना हो कुछ। राइट। जब आप बाय डिजाइन गलतियां करते हैं, इतनी आपने देखा जो आप बता रहे हैं, तो ये एक्सीडेंट नहीं, इंसिडेंस है। तो इसको इंसिडेंस बोलिए। और इंसिडेंस का सबसे बड़ा फायदा ये होता है दैट यू कैन
actually control it. You can avoid incidences हम्म। by doing something which is scientific. ठीक है। एक्सीडेंट का मतलब ये होता है कि कुछ कर ही नहीं सकते, हाथ के बाहर है। जैसे कोई प्राकृतिक आपदा होती है, करेक्ट आप नहीं कुछ कर सकते, आप फिर केवल उसके बाद का डिजास्टर मैनेजमेंट पे ध्यान देते हैं। राइट। यहाँ मैं उसको एक्सीडेंट नहीं मानता हूँ, रोड क्रैश मानता हूँ, बिकॉज आप सड़क पे निकल जाए, आपको पता चल जाएगा। हाँ। इनफैक्ट बताया, मुझे तो कभी कभी लगता है कि अभी जो इतना एक्सीडेंट का डेटा है हम्म। वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बाय लक, मैं भी ये मानता हूँ, बाय लक या बाय दैट कॉस्मो रीजन, या हमारे लोग इतने समझदार हैं कि इस हजारदस सिचुएशन में भी एक्सीडेंट इतना कम हो रहा है, यही दाद देना पड़ेगा। क्योंकि आप सड़क पे निकल जाइए, कोई लेन पे नहीं चलता हुआ मिलेगा, बिल्कुल। हर आदमी बैक टू बैक, बम्पर टू बम्पर चलता हुआ मिलेगा, यस। कहीं से कोई भी काट लेगा, बिल्कुल। मोड़ने में कोई दिक्कत नहीं, टू व्हीलर ऐसे चलते हैं जैसे पानी बह रहा हो, कहीं से भी टू व्हीलर आ जाएगा हमारी सड़कों सॉरी पे। टू इंटरप्ट, Yes. जब मैंने ड्राइविंग सीखी तो मुझे यहाँ पे एक टैक्सी के ड्राइवर ने मुझे बताया कि दिल्ली में गाड़ी चलाने का सबसे अच्छा तरीका है, इफ़ यू हैव टू टेक अ राइट टर्न तो आप लेफ्ट में लेफ्ट में जाओ, घूम के जाओ, घूम के जाओ। सबको एंड blur इफ यू हैव करके। टेक अ लेफ्ट टर्न तो आप उसका उल्टा करो, बिकॉज यू विल सेव टाइम। और नहीं अगर ऐसा करेंगे तो बाकी लोग बोलेंगे तो पप्पू है, यस। तो रुका हो गया, आपका बॉस भी बोलेगा तो ऑफिस लेट आया। माहौल ऐसा बन गया। सो यू आर राइट। सो कहीं ना कहीं इसको एक्सीडेंट मत बोलिए, इसको क्रैश बोलिए, इंसिडेंट्स बहुत बोलिए, इंपॉर्टेंट है। yes, क्योंकि accident। एक्सीडेंट बोलने से हमें लगता है कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, राइट राइट एक्सीडेंट तो हो गया, राइट। नहीं, ये हमारी सबकी ये सिस्टमेटिक एरर है। अगर जो जैसे आप लोग शेयर मार्केट को स्टडी करते हैं ना, तो सिस्टमेटिक एरर, अनसिस्टमेटिक एरर, जो बीटा हम लोग बोलते हैं, करेक्ट। तो जो सिस्टमेटिक वाला पार्ट है उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। Right. जब एक्सीडेंट बोल देते हैं तो जिम्मेदारी किसी की नहीं है, किसी अरे की- गलती से हो गया, दुर्भाग्य से हो गया, Right. सब शोक संदेश देते हैं। राइट। तो पहली बात तो एक्सीडेंट नहीं है, इंसिडेंस है, इसको रोड क्रैश बोले। दूसरी बात जो आपने कहा है स्पीड, एक बात बताइए, फिजिक्स के आप पढ़े हुए हैं, ये जो रोड क्रैश होगा, रोड क्रैश अगर जानलेवा हो रहा है, क्योंकि हमारा, आप समझ रहे हैं ना, हमारा इंसिडेंस जो रेट है, बहुत। आप यूएस में देखिए कि 20-25 लाख इंसिडेंस है तो 30,000-35,000 का डेथ है। राइट। हमारे यहाँ 5 लाख में ही, मतलब आप देखो 5 लाख वर्सेस 1,70,000, आप बहुत हमारी high है। इंटेंसिटी ऑफ डेथ देखो, बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब बिल्कुल है कि हमारा स्पीड मैनेजमेंट में इशू है। अब ये रिपोर्ट में क्यों आता है? आप जो रिपोर्ट देख रहे हो, ये किसका रिपोर्ट है? ये पुलिस का रिपोर्ट है। तो पुलिस को जितनी बात समझ में आ जाती है वो लिख देते हैं, क्योंकि उनको वो एविडेंस दिख रहा होता है। प्लीज ऑल्सो अंडरस्टैंड दियर प्रॉब्लम कि उस समय मौके वारदात पे तो वही है, और मौके वारदात पे पहले उसकी जान बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्रैश रिसर्च है हमारे देश में, कौन करता है? आपको जो डेटा मिल रहा है, दैट इज नॉट क्रैश रिसर्च, दैट इज FIR डेटा। तो एज ए लेमैन जब आप देखेंगे, आप कब पहुंच रहे हो वहां पे? जब एक्सीडेंट हो गया। यस। तो एज ए लेमैन जब वहां पहुंचेंगे और अगर आपको कुछ एविडेंस नहीं दिखे कि इस कारण से हुआ है, तो आप किसको ब्लेम करेंगे? स्पीड को ब्लेम करेंगे। स्पीड को ब्लेम करें। तो ये बाय डिफॉल्ट ऑप्शन है हमारे टिक में। तो ये बोलना बहुत मुश्किल है। अगर ये पता ही चल जाता है, एक बात बताइए, तो हम सिटी में 30 का स्पीड कर देते हैं, हाँ, खत्म, सॉल्व हो जाना चाहिए। यस। समस्या ये है कि हमारे यहाँ क्रैश रिसर्च का डेटा बहुत कम है, और इसीलिए अब जैसे ICAT को नेट्रिप ने मनोनीत किया, मैं मदद कर रहा था उसमें, काफ़ी राशि ये करके कंसोर्टियम में हमारे OEMs के सब मिलके, हम लोगों ने बॉश सब मिलके किया, मैं भी वहाँ पे काफ़ी इन्वॉल्व हूँ। मुझे लगता है क्रैश रिसर्च के ऊपर सरकार को खर्च करनी चाहिए। और आज डिजिटल डेटा हमारे पास है। मुझे बड़ा खुशी हुआ जब ये V2V V2X की बात चल रही थी, क्योंकि हमारे पास डेटा होगा। राइट। वी एक्चुअली नीड, अगर रोड सेफ्टी को सॉल्व करना है तो हमें, जैसे आधार और UPI फाइनेंशियल इसमें हुआ ना, उसी तरीके से वी नीड अ DPI ऑफ रोड सेफ्टी। एक हमें डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए इसको आंदोलन देने के लिए, क्योंकि अगर डेटा भी करेक्ट नहीं होगा तो डिसीजन मेकिंग भी करेक्ट नहीं होगी। चाहे अपना मोटर व्हीकल लेजिस्लेशन में अगर आप देखें, रोड सेफ्टी पॉलिसी, इंटरवेंशन की बात कर रहे हो आप, तो गलत चीजों पे डिसीजन मेकिंग होगी। आपका वही मैं बोला, कहीं हम गलती तो नहीं कर रहे हैं। और मैंने ऐसा देखा है कि आप जब इंट्यूशन से कुछ सोचते हो, और साइंस और इंट्यूशन हमेशा एक नहीं हो पाएगा, कहीं कहीं हो पाएगा पर हर जगह नहीं हो पाएगा। तो जो स्पीड को लेकर अगर आपने ये सोच लिया कि जो वहां से डेटा आ रहा है उस पर हम काम करें, आई थिंक इट विल नॉट बी फॉर डायग्नोस्टिक, दैट्स नॉट ए राइट डेटा, दैट्स अ ओके डेटा फॉर FIR।
राइट आप थोड़ा और इंटरवेंशन कर लीजिए चलेगा, बट ऑन ए पिन पॉइंटेड इतना बड़ा स्केल और अर्जेंसी है, इतने लोग मर रहे हैं, राइट तो वी कैन नॉट रिलाई ऑन दैट डेटा, वी शुड डू आवर ओन क्रैश रिसर्च के ऊपर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे अलग अलग, फॉर एग्जांपल इन जनरल सर क्रैश रिसर्च क्या है, इफ यू कैन जस्ट टॉक अबाउट, और किस क्रैश तरह से हम रिसर्च इज इस पे काम कर एक्चुअली, सकते हैं? आई टेल यू, आई हैड अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी फॉर माय ओन लास्ट कंपनी। जब मैं जब मैं हेला में था, हेला में था, yes. हेला का जब मुझे मौका मिला था पूरी स्ट्रेटजी बनाने का इंडिया में, यू वोंट इमेजिन, मैं बहुत प्रभावित था स्टीव जॉब से उन दिनों, और वैल्यू रिसर्च इनोवेशन का, ब्लू ओशियन स्ट्रेटजी का बड़ा मैं भक्त था। तो मैं हेला बिकेम लाइक BIFR में चला गया था ये कंपनी। तो जब मैं ज्वाइन किया था तो हेला गॉट बैक दिस कंपनी, लीगल डिस्प्यूट था, इसके लिए BIFR में चला गया था। तो इट्स अ सेकेंड इनिंग ऑफ हेला मुझे बनाने का मौका मिला, जीरो से, स्क्रैच से। तो जब मैं स्ट्रेटजी बना रहा था तो मैंने एक डेटा देखा, तभी से मैं रोड सेफ्टी में आया। वो डेटा देख के मैं चौंक गया कि हर मिनट पे एक एक्सीडेंट इंडिया में होता है, हर 4 मिनट पे, अब तो 3.5 मिनट में एक आदमी मर जाता है। मैंने कहा नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। मैं आपको 2010 की बात बता रहा हूँ, आप 2014 बोले ना कि आफ्टर मुंडेज डेथ एवरीबडी स्टार्टेड वर्किंग एंड मंत्री जी आए, मैं 2010 की बात बता रहा हूँ। मुझे ऐसा लगा कि मैं अगर कुछ अच्छा, मुझे हेला को दोबारा लाना इंडिया में, तो आई नीड टू सॉल्व अ रियल प्रॉब्लम, बिकॉज तभी हमें यहाँ एक अच्छा वेलकम भी मिलेगा। और हम ऑलरेडी पीछे हो चुके थे, दूसरी लाइटिंग कंपनियां आगे चली गई थी। तो अगर मैं कुछ बड़ा नहीं करूंगा, कुछ बदलाव नहीं लाऊंगा, अगर कोई सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करूंगा, तो मेरा ब्लू ओशियन बनेगा ही नहीं। थिंकिंग दैट, हमने वो स्ट्रेटजी बनाई। आई कैन ओनली गिव यू अ वेरी क्लोजिंग आंसर ऑन दैट इज, फॉर मी इट वाज लाइक अ डिफिकल्ट टास्क. I said, why this 42% people are just going tailgating? And then I myself collected lot of crash pictures. You know, एंड्रूजगंज में उस साल एक बालू अनलोड करने वाला ट्रक रुका हुआ था फ्लाईओवर के लेफ्ट साइड में, और एक इनोवा घुस गई पूरी, इनोवा, उसके पीछे एक सेंट्रो घुस गया, 5 आदमी मर गया। और सुबह सुबह की बात थी। आई वॉज आस्किंग माई सेल्फ कि लोग टेल लाइट क्यों नहीं जलाते हैं। देन आई फाउंड आउट कि टेल लाइट जलाएंगे तब ना जब वो जलने लायक होगा। सो मोस्ट ऑफ दोस टेल लाइट्स, एंड दैट इज वेयर द हेला कनेक्ट केम, वेर एक्चुअली कमिंग फ्रॉम व्हेन इंडिया का जो पहला ट्रक का जो मैन्युफैक्चरिंग जमशेदपुर में हुआ था, टाटा मर्सिडीज केम टू इंडिया, सो हेला वाज सप्लाइड टू मर्सिडीज, हेला आल्सो केम इन हियर। उस समय की जो टूलिंग हेला लेके आई थी, कैन यू इमेजिन 1959-60 वाला, दैट कंटिन्यूज टिल देन। और वही टेक्नोलॉजी वही चल रही थी ट्रकों के ऊपर, 25 साल पुरानी। और वो मुझे पता है कि 500 किलोमीटर चलने के बाद वो टंगस्टन का बल्ब, वो जितने 12, 32, 13, 11 जो बल्ब उसमें लगे रहते, 4 चैम्बर टेल लैंप एंड कॉमनाइज टेल लैंप, 2 ही तरह का टेल लैंप था। और ये सब बाकी लोग कॉपी किया। भाई लाइटिंग इंजीनियरिंग का टेक्नोलॉजी तो यहाँ था नहीं, करेक्ट। तो कॉपी कर करके जब आप ऑप्टिक्स की कॉपी करते हैं तो यू डोंट गेट दैट। प्लस किसी ने इनोवेट नहीं किया। वही दोनों बोल्ट निकला हुआ प्लास्टिक से, वाइब्रेशन में टूटना, ये तो मतलब 80 किलोमीटर 70 किलोमीटर में भी अगर वाइब्रेशन हुआ तो टूट जाएगा। सो अनफॉर्चुनेटली 98-99% ऑफ ट्रक्स डिड नॉट हैव द कंस्पिक्यूटी। और उस समय वो भी नहीं था रेगुलेशन हमारा अंडर प्रोटेक्शन का, जो साइड प्रोटेक्शन और जो वो नहीं था। तो देख के तो इतना दुख होता था। और वो मैंने सिमुलेशन देखा ट्रिप का बना हुआ, एंड देन आई सेड वी शुड मेक अ डिफरेंस टू दिस। मैंने अपनी जान लगा दी फिर। और मैकेंजी मुझे बोलता रहा दैट लेट अस डिफरेंट स्टाइल ऑफ स्ट्रेटजी मेकिंग। मैंने कहा मुझे यही करना है। आई वांट हेला टू बी नोन ऑन दी रियली मेकिंग अ डिफरेंस विद द कंट्रीज सेफ्टी, रोड सेफ्टी के ऊपर। उस समय तो अलग ही था, हेला BIFR से निकला हुआ था। मुझे तो एक तरह से सेकेंड इनिंग को डिजाइन करना था, एंड आई वाज लकी एनफ। बट Hela became very successful, right? Very successful. One of the, so I tell you, the core was safety. Why am I in the road safety? लोगों को मुझे, they know me more like a road safety activist. They don't know I have built a company from scratch on road safety. Yeah. So that's why this whole technology of tomorrow for the life of today on Indian roads. और मैंने कहा मैं इसको ना 25 साल पीछे है, मैं इसको 10 साल आगे ले जाऊंगा। वो है ना कॉन्सेप्ट सर कि बिजनेस का सक्सेस विल डिपेंड इफ यू नो व्हाई पार्ट ऑफ इट, नॉट हाउ। और इट्स वेरी चैलेंजिंग, बिलीव मी। जब मैं शुरू किया तो मैंने पहले तो मुझे इंटरनली सारा ये था, तो इंटरनली सबको कन्विंस किया। जब वहाँ ग्लोबल बोर्ड में प्रेजेंट किया, ये स्टोरी मैं सबको बताता हूँ कि मैकेंजी वाज आल्सो स्केप्टिकल कि भाई मेरी स्ट्रैटेजी थी इसके ऊपर कि मुझे रोड डेथ को कम करना है, और मेरे पास 8 एक्सपर्ट थे, दे वर कन्विंस्ड। अब मैं बोर्ड को प्रेजेंट कर रहा हूँ 3rd of December
2011 Hmm. मुझे याद है. And believe me, the success I got there, Hmm. you know, the owner of Hela, the family, he was the president then. He stood up, Dr. Beren. He said, Mr. Pandey, Hmm. if these people, and they were all CFO, CEO, all the group global board members, if these people does not invest into your strategy, do call me directly. I have better investors for you. It's very risky then, Yeah. right? Then I was sent many countries to under training. I was participating in a intercontinental trainings in factories and all. फिर मैंने कहा कि मुझे एक टेक्नोलॉजी जंप स्ट्रैटेजी बनानी, यही मैंने वहाँ कन्विंस किया. आई गॉट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम देम और मैंने बना दिया प्रोडक्ट विद 0 कस्टमर ऑर्डर और 2012 के ऑटो एक्सपो में लॉन्च कर दिया. एक एक्वेरियम में पहली बार फिट एंड फॉरगेट टेल लाइट विद 5 साल का वारंटी, जो कभी सोचा नहीं था लाइटिंग वर्ल्ड में. मैंने उसको डाल के आया, गॉट सो मच ऑफ, इनफैक्ट दैट वाज माय स्टार्टिंग ऑफ पीपल टॉकिंग टू मी. तब तक कोई जानता नहीं था. तो लॉट ऑफ न्यूज़पेपर, मैगजीन सब में आ गया. देन आई गॉट अवार्ड वन आफ्टर अनदर. बट 1 साल हो गए, कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उसका दाम ज्यादा था. मैंने भले 10,000 वाला टेल लाइट को मैं यहाँ कॉस्ट इनोवेशन करके 1,500 पे कर दिया, बट वो 300 रुपए का तो 1,500 5 गुना था. करेक्ट. भले मैं 5 साल का वारंटी दे दिया. दूसरा टेल लैम्प टूटा है, किसको फर्क पड़ता है? इट इज फॉर अदर सेफ्टी. राइट. तो हमारा बायर बोलता है ओईएम के अंदर में कि मैं क्यों 50 रुपए एक्स्ट्रा दूं जब कस्टमर की जरूरत नहीं है तो. एंड दिस वाज सो ट्रबलसम फॉर मी. 2013 में आई वाज अगेन इन अ वेरी कैश टाइट सिचुएशन, ऑन द ब्रिंक ऑफ बैंक्रप्सी अगेन. तब मैंने डिसाइड किया आई गो टू कस्टमर बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज फॉर मी, मेरा दिल बोलता है कि मुझे करना चाहिए और मेरा फाइनेंशियल सूट नहीं कर रहा है. सो वहां पे फिर आई क्रिएटेड दिस 2 डिसीजन आई टुक. वन, आई क्रिएटेड अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन 2013 में, कॉल्ड ड्राइव स्मार्ट ड्राइव सेफ. मैंने कहा अगर लोगों को नहीं सेफ्टी समझ में आती है तो मैं सड़क पे उतर के बताऊंगा. स्कूल्स, कॉलेजेस, तब से मैं शुरू हो गया. दैट एनजीओ इज अ हेला सब्सिडरी एनजीओ. अभी भी 18% इक्विटी उसमें है, ड्राइव स्मार्ट ड्राइव सेफ. आई एम द प्रेसिडेंट. फिर फाइनली ओईएम्स कन्विंस कैसे हुए? बता तो रहा हूँ. ये तो मैंने लिया अवेयरनेस के ऊपर. तो मुझे अच्छी एडवोकेसी करने का मौका मिला, सब जगह मैं बोलना शुरू किया. दूसरा मैंने डिसीजन लिया कि कस्टमर नहीं खरीदा तो कस्टमर के पास जाओ. तो मैं सारे एक सूटकेस बनाया, उसमें लाइट डाली और वो एक्वेरियम टाइप का अपना वो बनाया. और जैसे नहीं पुराने जमाने में लोग जाते थे डेमोन्स्ट्रेट करने, मैं करीब 50 टॉप के फ्लीट ओनर इंडिया के फ्लीट ओनर के पास गया. चाहे आपका वो चेतक रोडवेज हो, चाहे वो वीआरएल हो, चाहे वो शर्मा ट्रांसपोर्ट हो, या बेस्ट रोडवेज हो, या डीजीएफसी हो, सब जगह में गया. और मेरे पास मेरा एक अच्छा दोस्त न्यूजीलैंड का एमडी, ही मार्टिन रैनबैक, अ जर्मन गाय, ही सपोर्टेड मी. तो यहाँ पे आपको पता है इंडिया में थोड़ा गोरा आदमी आता है, तो मैं मैकेनिक लोगों के साथ हाथ लगा कर उनको दिखाता था बाल्टी में पानी डाल के. और फिर ये मेहनत वाला काम जो किया उसका रिजल्ट ये निकला. पहला कस्टमर मेरा वीआरएल. आई ऑलवेज थैंक हिम. वीआरएल वाज माय फर्स्ट क्रैकिंग. एक तो मुझे फायदा मिला कि डाइमलर ने मेरा प्रोडक्ट लगा के हैनोवर में दिखाया, बट स्टिल मेरा बिका नहीं, किसी ने खरीदा नहीं. सैंपल के लिए अलग बात होती है. तो वीआरएल वाज द फर्स्ट कस्टमर. बोला सर आपका प्रोडक्ट हम हर महीना 100 गाड़ी में बदलेंगे. फिर उसने चिट्ठी दी ओईएम्स के नाम से, बोले कि मुझे नया गाड़ी जो चाहिए वो इसके साथ चाहिए. और मेरा एक लक था, विनोद दासरी, आई मेट हिम इन अ प्लेन. और वो मेरा भाग्य बता, कभी लक भी चाहिए होता. सो आई वाज गोइंग टू चेन्नई, ही वाज इन द प्लेन एंड आई वाज डेस्परेट. मैं ऑलरेडी हार रहा था. तो मैं 40 मिनट बिना रुके ही वाज इन बिजनेस क्लास, मैं लीन करके बिना लैपटॉप के आई गेव हिम ऑल माय thought process of safety and how Ashok Leyland can gain out of it. It's like Intel Inside campaign. He picked it up. The launch, Boss truck launched afterwards. उसके अंदर में top 5 के USP में एक USP was this tail lamp. And then my life changed. Very nice. उसके बाद से all OEMs. Today the reality is India has changed because of that hard work we did. Today there is no truck in this country which does not come with LED tail light. Because that light I tested on 50G. कि लगाओ तो मतलब it should not be given control to the driver to switch off or switch on. वो चले. और उसके अंदर 1.5-2 वाट का बल्ब लगता है, कहाँ 50 वाट का. तो कोई तेल का खर्च नहीं होगा, कोई बैटरी भी डाउन नहीं होगा. तो मैंने प्रॉब्लम सॉल्व की और 3 मीटर एक्स्ट्रा डिस्टेंस दिया ताकि लोग ब्रेकिंग डिस्टेंस ले सकें. और उसके अंदर का जो एलईडी का जो बेनिफिट था वो तो था ही. फ्रेस्नेल लेंस ऐसा बनाया, अभी भी आप जाओगे, अब जब हाईवे पे जाओगे आपको दिखेगा, कुछ ट्रक आपको अलग दिखेगा.
दैट्स माय एग्जांपल। मैं एक्चुअली आई जस्ट वांटेड टू डिस्कस दिस क्योंकि समटाइम्स आई ड्राइव ऑन एक्सप्रेसवेज। अभी तो बहुत सारे एक्सप्रेसवेज आ गए हैं, Yes, तो यू हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी। माय रूल इज दैट आई विल स्टार्ट अराउंड 9 एंड क्लोज बिफोर सनसेट। सो आफ्टर सनराइज बिफोर सनसेट, मेनली बिकॉज ऑफ द सेफ्टी। बट कभी कभी ऐसा नहीं हो पाता होता है, है। आप सो सड़क व्हाट पे रह हैपेंस, जाते हैं, लेट्स से 7 बजे 8 बजे रात को मैं हूँ, so I have to control my speed to 70, less than 80 in many of the cases, wherever even the speed limits are around 120. क्यों? क्योंकि 2 reasons हैं। There are tractors, mainly tractors स्लो मूविंग and यार, trucks। ये slow moving है। और कहीं पे खड़ा हो जाएगा, हर लेन में रहेगा। one is कि वो कहीं पे खड़े हैं सर, और second है even if they are moving ना, तो वो पता ही नहीं चलता कि it is a truck। वो अचानक से कुछ दिखेगा, there is no आपके lighting पास or डिस्टेंस anything। ही नहीं है, ब्रेकिंग हाँ, डिस्टेंस। नंबर 1 एक ये है। दूसरा कि बहुत बिहेवियर पे हम आ रहे हैं, बिकॉज वन इज लाइक वन प्रॉब्लम बट पार्ट गुड न्यूज ये है, देखो, हाँ, दैट वी सॉल्व दैट प्रॉब्लम Yes, टुडे। यू विल right, सी देयर इज नो ट्रक व्हिच डजंट कम विदाउट correct, एलईडी टेल लाइट। yes। मेरी जर्नी वहां से शुरू हुई, So कंपनी सक्सीडेड over a एंड वी रियली मेड अ बिग डिफरेंस। राइट, सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो सारे नए ट्रक्स होंगे और सारे नए हाँ, ओवर टाइम, ओवर पीरियड यू इट कैन सी। विल फिनिश। एंड आप जब ओवरटेक कर रहे हो तो आपको ना, आपके एक डिस्कम्फर्ट ग्लेयर हम लोग बोलते राइट, हैं राइट। टेक्निकल, जिसका लैम्डा वैल्यू जो होना चाहिए वो आपको डिस्कम्फर्ट ग्लेयर दे, ना ज्यादा ना कम। तो उस हिसाब से वो बना है कि यू कैन गेज दी स्पीड एंड आपका पेडल पे पैर डालना है या नहीं लेना है रिस्क दैट। क्योंकि ड्राइवर को जब तक आप असिस्ट नहीं करोगे, राइट, केवल उसको बिहेवियर पे गाली देते रहेंगे, आई थिंक दैट्स आल्सो रॉन्ग। वी शुड सपोर्ट हिम। तो अगर उसको टेल लाइट नहीं दिखता और दिखता है, डोंट यू थिंक ही विल बी मोर सेफ व्हेन दिखे उसको, जब वो कैलकुलेट कर सकता है। सो कहीं ना कहीं व्हेन यू आर आस्किंग मी अबाउट द कैसे हम बदल सकते हैं, टेक्नोलॉजी भी टेक्नोलॉजी तो बहुत मैसिव रोल है बहुत सर। nice। बहुत ही, आई मीन बिहेवियर चेंज के लिए भी टेक्नोलॉजी एज असिस्टेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा एक और क्वेश्चन था इसी पे। फॉर एग्जांपल, अब मैं जैसे इवनिंग होने लगती है ना, देन आई थिंक नाउ इट्स मैंडेट कि आपका हेडलाइट ऑन रहेगी। डीआरएल तो mainly डे टाइम में भी चलेगा। हाँ। जो डीआरएल है, डे टाइम रनिंग लाइट, राइट, बट बहुत सारी कार्स पुरानी है या जिसमें भी है, पीपल डोंट स्विच ऑन द लाइट। वो क्या करते हैं, मतलब उनको बैटरी बचानी है या क्या बचाते हैं? 6 से जब बिल्कुल अंधेरा होगा देन दे विल स्विच ऑन द लाइट। दिस इज प्योर अवेयरनेस प्रॉब्लम। हाँ, इट्स अवेयरनेस। फॉर एग्जांपल, आई टेल यू वेरी टिपिकल एग्जांपल, अगेन हेला इज इन्वॉल्व। जो आप हाई बीम लो बीम का आपको कंप्लेन मिलता है, हाँ, हाई बीम में आप ग्लेयर होते हो एंड लॉट ऑफ एक्सीडेंट हैपेंस बिकॉज ऑफ दैट। राइट, तो हमें दुख लगता है, हम गुस्सा भी होते हैं, बट आपको कई बार ये समझ में आएगा, आश्चर्य की बात, कि वो बेचारा लो बीम पे चल रहा है, फिर भी आपको हाई बीम दिख रहा है। उसका कारण ये है कि मेनी पीपल डजंट नो देयर इज अ सिस्टम इन एवरी कार, ट्रक्स जो भी है। आपको याद है आपके कार में भी 0 1 2 3 एक स्विच है, हाँ, आपने यूज किया? समझ में नहीं आया वो क्या है आज तक। कोई यूज नहीं करता, आपने उसका पैसा दे दिया है। हाँ, वो यही तो मैं बोल रहा हूँ कि हमारे कंट्री में रेगुलेशन मल्टीप्लाइड बाय जीरो एनफोर्समेंट इज जीरो। भाई इन्फोर्सेबल रेगुलेशन होना चाहिए, उसको अवेयरनेस भी नहीं है, nobody अवेयरनेस cares। नहीं है। तो अब आप देखो, ये आपका अगर पीछे ज्यादा वजन का आदमी बैठा हुआ है तो गाड़ी ऐसे हो जाएगा ना, तो क्या होगा, आपका लो बीम हाई बीम हो जाएगा। ओह, तो वो इसके एडजस्ट करने के लिए दिया है कि अगर आगे ज्यादा लोड हो गया, गाड़ी तो बेसिकली 4 पहिए पे है, तो जैसे ही एक्सेल ऊपर नीचे हुआ, पीछे आपने 2 वो रख दिया, सूटकेस रख दिया, गई ऊपर, लो बीम हाई बीम हो गया। तो जब, अच्छा कौन नहीं करेगा, हु वांट्स टू किल पीपल, राइट, 100%। अगर पता होगा तो 0 1 2 3 स्विच का मैं हर जगह पूछता हूँ, 99% लोग उस स्विच का यूज नहीं करते। वो हम लोग हेला का हेडलैम्प लेवलर इज लाइक वी आर मार्केट लीडर इन द कंट्री। हर हेडलैम्प में एक लेवलर जाता है, लेवलर इस स्विच से कनेक्टेड होता है, यूज नहीं करते लोग। राइट, दुर्भाग्य की बात है। सो यू आर राइट, दैट अवेयरनेस के बिना नहीं होगा। क्योंकि बिहेवियर को जनरली ब्लेम किया जाता है। जैसे आई वाज टॉकिंग अबाउट 4 टॉप रीजंस कि हम ओवर स्पीड करते हैं जो भी है, उसके बाद हम रेड लाइट जंप करते हैं, रॉन्ग साइड में ड्राइव करते हैं। उसके लिए आई थिंक कई बार आपने इसी बात पे मैं आपको बता रहा था कि क्रैश रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है। और ये जो मैं इतनी बड़ी कंपनी बना दी मैंने, हाँ। वो एक रिसर्च से बना दी। राइट, अगर वो रिसर्च नहीं होता आईकैट और ट्रिप का, हाँ, जो मुझे नहीं मिला रहता, यहाँ पे आईसॉल करके एक आईकैट का ये होता है, लाइटिंग के ऊपर इंटरनेशनल सिंपोजियम, मैं उसका इतना बेनिफिट लिया, तभी मैं वैल्यू रिसर्च इनोवेशन का वो ब्लू ओशियन कर पाया, मैं कंपनी को बना पाया। आज वो कंपनी ग्रो कर रही है, इतने अवार्ड्स मिल रहे हैं हेला को। वहां से मैंने कहा कि जैसे फेविकॉल मतलब चिपकना, सेफ लाइट में हेला आना चाहिए, ये डिफरेंस हम लाना चाहते हैं।
और हम लेके आए, पहले ट्रक को मैनेज किया, फिर बस के लिए हमने प्रोजेक्टर लैंप्स बनाए। आप देखो बस बदल गया पूरा इंडिया का। वी आर मार्केट लीडर देयर इन माय लास्ट कंपनी। सिमिलरली टू व्हीलर में हमने शुरुआत किया एलईडी का हेडलैम्प देना, ताकि वहां उसका दिक्कत ना हो। सो कहीं ना कहीं एज यू राइटली सेड कि हम इंट्यूटिव ना होके पुलिस का एफआईआर ना करके क्रैश रिसर्च, आपको पता है ना साइंस में कॉज एंड इफेक्ट, दैट कोरिलेशन हैज टू हैपन। सो ये एक्सपेरिमेंटल कॉज एंड इफेक्ट लेकर के क्रैश रिसर्च अगर नहीं होगा हमारे देश में, और सुख की बात ये, अच्छी बात ये है कि आज हर गाड़ी कनेक्टेड हो रहा है। हाँ, बिल्कुल। V2V V2X है, आपका डेटा की कोई कमी है? बिल्कुल इनफ डेटा है। ADAS आ रहा है, ADAS ना काम करे इंडिया में, डेटा तो है, डेटा तो है। उस डेटा को लेके आप डेटा लेक बना दीजिए। मैं तो तैयार हूँ लीडरशिप लेने के लिए खुद। मैं कितनी बार बोला हूँ, इवन मंत्रालय में भी हर जगह बात होती है और काम हो भी रहा है उस पर, आज नहीं तो कल होने वाला है। मैंने कहा मुझे डेटा लेक बना दीजिए, आप सबको कनेक्ट कर दीजिए, डेटा लेक का एक्सेस दे दीजिए। हमारी ऑटोमोबाइल में इतनी सारी कंपनी है, इतने स्टार्टअप को मैं मदद कर रहा हूँ, सब मिल करके मैं बनाऊंगा इंडिया का DPI। पॉसिबल है ये, एक जो हम आंदोलन लाना चाहते हैं ये संभव है, बिकॉज अब डेटा इतना हमारे पास है। सो क्रैश रिसर्च इज द की, नॉट स्पीडिंग, जस्ट टेलिंग कि FIR में है, तो यही हमें सॉल्व करना है। बिल्कुल, आई थिंक इट हैज टू बी ब्लेंड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अवेयरनेस फॉर द इम्प्रूवमेंट। बिना क्रैश रिसर्च के मत डिसीजन। हाँ, बिना क्रैश रिसर्च के, और ये टेक्नोलॉजी एज वेल एज बिहेवियर पे भी हमें अवेयरनेस सब कुछ करना होगा। टेक्नोलॉजी अलोन कैन नॉट मैनेज एंड टू एंड, बट स्टार्टिंग होगा रिसर्च पूरा से। इकोसिस्टम भी है। हाँ, जैसे हम गाड़ी बनाते हैं। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट और मुझे समझ में आया सर विद दिस सक्सेस स्टोरी ऑफ हेला, कि रोड सेफ्टी में अभी बहुत स्कोप है फॉर यू नो हैविंग बिल्डिंग अ गुड बिजनेस आल्सो। एक तो दो चार केसेस कर दिया आपने, मैं कर क्या रहा हूँ अभी तो, और आज मैं फ्री बर्ड, देखो आज मैं फ्री बर्ड हूँ। मैं हेला से टाटा में गया, वहाँ CEO था बैटरी का। उसके बाद टाटा बैटरी के बाद मैं, सरकार ने मुझे चुन ली। हम 4 लोग चुने गए थे, जो 840 एप्लीकेंट्स थे CEOs हमारे। उसमें हम थे, JP मॉर्गन के MD एक थे, हमारे सैमसंग के CSO थी एकता, और SOS विलेज की। हम चारों जो गए थे सरकार में, वहां जाके मुझे लगा यार प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना है तो समाज, सरकार, बाजार को इकट्ठा होना पड़ेगा। यस, समाज, सरकार, बाजार, ये मैं सीखा। बिना बाजार के भी नहीं होगा सर। हाँ, बिना बाजार के नहीं होगा। अल्टीमेटली सरकार भी काम बाजार से कराती है, बिल्कुल, हर चीज। चाहे वो आप आधार का देख लो या UPI का देख लो, हर बड़ा बदलाव इस देश में बिना बाजार के कैसे होगा? आप कचरा के लिए जब वो करते हैं तो मशीन कोई तो कोई बनाएगा, स्वच्छता अभियान कोई ना कोई तो करेगा, डस्टबिन कोई ना कोई तो बनाएगा। तो बिना सरकार, समाज, बाजार के, एक तो इकट्ठा आना है। दूसरा रूल ये है, इट शुड बी पार्टनरशिप ऑफ इक्वल। इट शुड नॉट बिकम एक हेलिकल गियर बना दीजिए और 2 छोटे गियर लगा दीजिए, इन दोनों को बेचारे टुक टुक चलेंगे। ऐसा नहीं, तीनों को रिदम में चलना पड़ेगा। तो मैं जब सरकार में गया और मैंने बेगरी फ्री इंडिया पे, इतना अच्छा मुझे मजा आ गया काम करके। आपने सुना होगा इंदौर बेगरी फ्री हुआ, दैट्स माय हार्ड वर्क ऑफ माय, मेरा पहला शहर वही था जहाँ मैं पहला टास्क फोर्स बनाए, मेहनत के, पॉलिसी बनाई। आज मैंने बेगरी फ्री इंडिया के लिए स्माइल बेगरी का पूरा स्कीम बनाया, गाइडलाइन नहीं बनाई, अभी भी मैं 1 दिन देता हूँ मंत्रालय में। तो मैंने बोला, चूंकि आपने जैसे कहा ना, अभी तक मैं प्रोफेशनल MD CEO रहा, मैंने कहा नहीं, मुझे खुद अपना सेफ्टी पे जब इतनी मेहनत कर ही रहा हूँ, तो जो चीज कोई और नहीं कर रहा है इंडिया स्पेसिफिक, उसके अंदर तो बिजनेस का भी चांस है बहुत। तो मैंने एक कंपनी बनाई, आपके लिए न्यूज ही होगा, पैरासेफ नाम से। पैरासेफ, हाँ। उसके अंदर पैराकॉट का ये सब्सिडरी है, 90% उनका है, 10% मेरा है। और हम लोगों ने कुछ अच्छी मेहनत करके बड़ी अच्छी चीज लाई है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं 4-5 दिन पहले रोड सेफ्टी मंथ में गुड़गांव पुलिस के साथ उनके सारे राइडर्स को, अब मान लीजिए आप कार को अगर देखें तो कार में 3rd ब्रेक लाइट होता है, तो आपको पता चल जाता है पीछे से। 2 व्हीलर का तो टेल लाइट भी नहीं दिखता है, बिल्कुल नहीं दिखता। वो भी अगर लेडी बैठी है तो वो उनके सलवार से ढक जाता है। बिल्कुल। तो जो उनको जब दिखेगा ही नहीं, हमारा 3 रूल है जो रोड सेफ्टी का, देखो, रुको, बचो। देखो, रुको, बचो, रिकॉग्निशन ऑफ ट्रैफिक, रिएक्शन, इंजरी अवॉइडेंस। आप इसमें सब कुछ डाल दो, सारी टेक्नोलॉजी। तो एयर बैग, सीट बेल्ट, ये सब इंजरी अवॉइडेंस में। देखो जो है रिकॉग्निशन ऑफ ट्रैफिक, चाहे वो रेड लाइट हो, जेब्रा क्रॉसिंग हो, हेडलैम्प हो, सिग्नलिंग हो, सब देखो में आता है। तो जब 2 व्हीलर वाला दिखेगा ही नहीं तभी हम लोग बात करते हैं रिफ्लेक्स टेप की। तो मैंने कहा एक्टिव लाइट बनाते हैं। मैंने उस दिन लॉन्च किया उसको, एक हेलमेट के ऊपर एक सिग्नल लाइट कि दूर से दिखे।
जैसे मैं ट्रक को सॉल्व किया, अब मैं टू व्हीलर का, तब मैं हेला में कर रहा था, अब मेरी खुद की कंपनी है पैरासेफ, उसमें मैंने किया। और क्या मेरा धुआंधार लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। वो लगा रहेगा, उसके अंदर बैटरी भी लगी हुई है और वो चार्ज हो जाता है मोबाइल के चार्जर से, छोटी सी पतली सी है, और आप उसको जला दो और वो ब्लिंक करता रहेगा। आपको नॉर्मल रखना है नॉर्मल रखो, आप हाईवे पे हो आपको बच के जाना है तो उसमें ब्लिंकिंग लगा दो। उसी तरह से मैंने सीट बेल्ट लोग नहीं पहनते, क्यों नहीं पहनते ये उन्हें पूछा, सर्वे कराया, तो बोले गंदा होता है, यहाँ गले में लगता है, इनकम्फर्टेबल होता है। तो मैंने एक 3 पॉइंट बड़ा अच्छा बटन सिस्टम बनाया है, आप लगा दो, आप सीट बेल्ट को भी कस्टमाइज कर सकते हो। अब मैं दे रहा हूँ OEM सबके बीच में, मैं सैंपल देने वाला हूँ कि वो फ्री में दे सकते हैं इसको, बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं करता है। कुशन है उसके अंदर, कुशन है, किसी का टमी बाहर है, किसी का पतला, जैसा है एडजस्ट कर लो। उसको बेल्ट बडी हम लोग बोलते हैं। हमने देखा कि छोटे बच्चे स्कूटर पे चलते हैं और माँ उसको पकड़ के चलती है या वो गिर जाता है। हमने कहा ऑलरेडी मोर्थ ने इसके ऊपर निकाला हुआ है गजट नोटिफिकेशन, हमने उसकी हार्डनेस बड़ी प्यारी बनाई, फिलहाल बच्चे पहनते नहीं है, हमने छोटा भीम से एग्रीमेंट कर लिया है, उसपे छोटा भीम का कैरेक्टर डालते हैं ताकि बच्चे पहने, वो लॉन्च कर दिया है। हेलमेट हमने लॉन्च किया बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे हेलमेट नहीं पहनते यहाँ, तो बच्चों के हेलमेट पे छोटा भीम का कैरेक्टर डाला है, उनसे किया है, उनको मैं रॉयल्टी दे रहा हूँ। तो आप सही बोले कि बाजार भी बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। जैसे हेला इतनी बड़ी कंपनी बनी यहाँ, हेला इंडिया लाइटिंग, एक रोड सेफ्टी की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो लोग क्यों नहीं पैसे देंगे। बिल्कुल, मैं तो देखा, हम DRL लेके लाए, इंडिया में लेके आए, हमने कितने सारे फॉग लाइट लेके आए नए नए तरीके के वहाँ हेला में, तो वी ग्रू। सिमिलरली बहुत सारी कंपनी की जरूरत है और बहुत सारे स्टार्टअप की भी जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक स्टार्टअप से काम करवाया था, मंत्रालय का इवेंट था, सेफ स्पीड चैलेंज। वो मोबाइल पे बता देता था कि आगे हम्प आने वाला है, आगे पोर्ट होल आने वाला है, और ऐसे डेटा जब होगा तो डेटा से आप क्या नहीं कर सकते। करेक्ट। तो आप सही बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं जब भी हमें पता चले क्रैश रिसर्च से कि ये समस्या है, फॉर एग्जांपल इंडिया का प्रॉब्लम है, राशि का क्रैश रिसर्च का डेटा है, वो ये बोलते हैं कि इंडिया में टू व्हीलर का बिहेवियर अलग है। अगर स्पीड ब्रेकर आता है तो पूरी दुनिया में टू व्हीलर वाला अपने को ब्रेक मारता है। इंडिया में जब देखता है सामने हम्प आ रहा है तो लेफ्ट और राइट भागता है। वो चाहेगा कि लेफ्ट से जाके मैं बिना हम्प को क्रॉस किए इधर से निकल जाऊं, इधर से निकल जाऊं। वो धीरे नहीं होगा। ये क्यों होता है मेरी समझ में। अब आप सोचो, तो आपको समझना पड़ेगा, लोकल फॉर लोकल। इंडिया के लिए आपको टेक्नोलॉजी बनानी होगी, वो बाहर वाले नहीं बना पाएंगे। हम 85% टू व्हीलर वाले हैं, इसलिए मैं अपनी कंपनी में टू व्हीलर के बहुत सारा, इनफैक्ट मैं कंपनी को सपोर्ट कर रहा हूँ, नियो कवच नाम से है, इंडिया का पहला लोकलाइज्ड एयर बैग फॉर टू व्हीलर, इन जैकेट वेस्ट और जीन्स में हम लोग लेके आए हैं। अच्छा खासा बिक रहा है, बट और प्रचार की जरूरत है। अभी हमारे रॉयल एनफील्ड का इतना बड़ा इवेंट हुआ था, वहाँ हमने डेमोन्स्ट्रेट किया था। सो OEMs भी उसको लेंगे, तो लेकिन अभी महंगा है, पहले तो और महंगा था जब बाहर से आ रहा था, अब तो हम लोकल बना रहे हैं तो बहुत सस्ता आ गया, आधा दाम पे आ गया, और उसको हम सस्ता करेंगे। लेकिन जब ये इंडिया के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तभी हमारा ये समझदारी होगा। हम बाहर का कॉपी पेस्ट करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि बाहर की लोग अलग हैं, सड़क अलग है और ट्रैफिक का मिक्स अलग है। वहां पे ट्रक ओवरटेकिंग लेन में नहीं चलता है, बिल्कुल, या ओवरटेकिंग लेन में चलता है। तो हम अपनी समस्या का निदान हमारे ही ब्रेन लगा के, हमारी ही कंपनियों, हमारे समाज, सरकार, बाजार को इकट्ठा करके करना होगा। क्या ये जो बिहेवियर का प्रॉब्लम है, ये मेनली बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर या रोड के डिजाइन की बहुत वजह से? बड़ी बात बोल दी आप। अब आप ये बताइए कि मुझे पता है, लेट्स से आई एम अ ट्रक ड्राइवर, मुझे पता है मेरी लेन लेफ्ट साइड में है, बट मैंने देखा है कि वो बिल्कुल राइट में चलेंगे, राइट सर? बट आपको ये इंट्यूशन कहाँ से आया? ये जनरली आता नहीं है लोगों को। आपको इंट्यूशन ये आया कि ये क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, आपने ये क्वेश्चन मुझसे पूछा। मेरा क्वेश्चन ये है कि कैसे आपको ये सोच आई कि हो सकता है जैसे वो रोड डिजाइन का भी? हाँ, मतलब बस इंट्यूशन हो गया सर। लेट्स से आपने ये एग्जांपल दिया ना कि हमारे पास स्पीड ब्रेकर है, बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं स्पीड हाँ, ब्रेकर उल्टा एक्सीडेंट ही हो जाता है। अब वो एक कोई भी इंडिविजुअल, हम लोगों में भी तो मतलब वी हैव अ बॉडी, वी हैव अ ब्रेन सेम एज अदर्स, तो वो रोड जो हमें दिखता है, स्पीड ब्रेकर दिखता है, तो हम लेफ्ट और राइट क्यों भागते हैं? आर वी मैड और वेरी वैलिड क्वेश्चन। अब वो ट्रक ड्राइवर उसमें क्यों चलता है? हम उसमें लिखा है साफ साफ कि दिस इज अ ओवरटेक आपने लेन, पूछा कभी वो उससे? वो खाली भी है। एक चीज आपको समझना पड़ेगा सबसे पहला प्रतीश जी, कि जो बंदा सड़क पे रोजी रोटी कमाने जा रहा है वो बेवकूफ नहीं है। हाँ, करेक्ट, राइट। वी आर नॉट द स्मार्टेस्ट, हाँ। मैं रोड सेफ्टी के बारे में बोलता हूँ तो मैं बड़ा विज्ञानी कुछ नहीं हूँ। मैं
हाँ, वो बेचारा रोज चल रहा है, करेक्ट। आप उससे जाके पूछिए। सबसे पहले तो ये ब्लेम गेम बंद कीजिए। हम्म, आज उस ड्राइवर को सैलरी कैसे मिल रहा है आपको पता है सब पता है सर। कि उसको टारगेट है। हम्म, अगर वो लेफ्ट लेन में चला हम्म, और हर 2 किलोमीटर पे उसको रुकना पड़ रहा है क्योंकि कोई साइकिल वाला आ गया, हाँ, कोई ट्रेलर आ गया, तो उसको माइलेज के अनुसार से जो एक रेस चाहिए वो मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर वो राइट साइड में जाके डाल दे और उसी गति से चलता रहे तो उसको माइलेज ज्यादा मिलेगा। प्लस उसका जो लेफ्ट साइड में रिस्क बढ़ रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ इस तरह का है ही नहीं बिहेवियर में, सबका मिला के प्रॉब्लम है ना, तो वो अपने को सेव करने के लिए वहां चला जाता है। उसी तरीके से आप पूछिए उस 2 व्हीलर वाले को, हम समझते हैं कि वो बेवकूफ है, हम उससे लड़ रहे हैं, तुमको हम फोर्स करेंगे रुकने के लिए। करेक्ट। इंडियंस को आप फोर्स कीजिएगा? आपको याद है हमने आजादी भी ली थी सिविल डिसोबीडियंस करके, करेक्ट। याद है ना आपको? सिविल डिसोबीडियंस। डिसोबीडियंस ये हमारे ब्लड में है। हाँ, हाँ, डिसोबीडियंस करना तो हम कहीं भी कर दें। तो अगर हमें ये समझना पड़ेगा, हमें पहले इनको अपने कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। मैं यही तो बोल रहा हूँ कि चालान से नहीं काम चलेगा। आप हवाई जहाज में जाते हैं, एक बार एयरोसिस आपको बोलती है कि प्लीज लगा लीजिए, वो चालान लेके आती है। हाँ, लगा लेते हैं। लगा लेते हैं, करेक्ट। क्योंकि आप वहां पे, आप यही लोग जो यहाँ नहीं कर रहे वहां कर रहे हैं, यही लोग मेट्रो में आप जाके देख लीजिए, दिल्ली मेट्रो में। दिल्ली मेट्रो आपको अच्छी लगती है ना? बहुत अच्छी। कॉम्प्लाइंट लगती है। हाँ। क्यों बिहेव करते हैं? आपको बड़ा रूट कॉज है, अगेन रिसर्च से निकला हुआ रूट कॉज है। मैं थैंक यू बोलूंगा बहुत सारे मेरे जो दोस्त हैं IITs में, जो मुझे मदद करते हैं, मेरे जो मेंटर्स हैं, कहीं ना कहीं बिहेवियर का लेना देना सबसे पहला होता है मानना। क्या वो मानते हैं? या तो आप इन्फोर्स कर लीजिए। करेक्ट। आप इतना इन्फोर्स कर दीजिए कि बिना कार्ड लगाए वो मेट्रो के अंदर नहीं घुस सकता, तो इन्फोर्स हो गया। आपको लगता है मेट्रो में कोई घुस जाएगा बिना कार्ड लगाए और बिना टिकट लिए? नहीं घुस सकता, हो गया इन्फोर्स। या तो आप इतना ज्यादा आपके पास फोर्स हो, जो नेशनल रोड सेफ्टी पेट्रोल की बात चल रही थी पहले, या तो पार्लियामेंट और सब मिलकर GST के ऐसा कुछ लाए, इन्फोर्समेंट पे 0 टॉलरेंस कर दें, वी आर डन। फिर आप गधे घोड़े बंदर सबको डिसिप्लिन कर देंगे। करेक्ट। आपको पता है ये कर नहीं सकते आप। ये इम्पॉसिबल है। तो अगर ये इम्पॉसिबल है, तो जब बिलियन आदमी वायलेट कर रहा है, तो बिलियन आदमी को कंट्रोल करने के लिए आपके पास लाख आदमी भी नहीं है, तो गो बैक टू द पीपल ऑफ इंडिया, उनसे पूछना पड़ेगा भाई तू ये करता क्यों है? हाँ, क्योंकि अमेंडमेंट एक्ट में बहुत हेवी पेनल्टीज थी, वो कोई कुछ काम नहीं किया उन तो पेनल्टीज। हमें ये समझना पड़ेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर also has a role to communicate, that's also enforcement. फॉर एग्जाम्पल, आप बोलते हो गांव के बीच में सड़क निकाल दी, वो बेचारे रोज इधर से उधर जाते थे, एक दूसरे के साथ एक दूसरे से बात करते थे। अगर ऐसे जगह पे आपने हाईवे निकाल दिया और एक का भतीजा उधर है, एक का बैल यहाँ से लेना है, ट्रैक्टर यहाँ से चलेगा और खेत उधर है, और आप बोलते हो कि वो 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर चल के फिर वो अंडरपास लेगा, आपने हर जगह क्यों नहीं अंडरपास बनाया? हम रोड बनाते हैं कार सेंट्रिक, हम रोड बनाते हैं स्पीड सेंट्रिक, बट भाई ह्यूमन सेंट्रिक बना लो। डिजाइन करते समय जो हमारा रोड होता है, आप ये आपको इसीलिए पता है, एक्सप्रेस वेज पे भी देखेंगे आप तो लोग बाइक उठाते रहते हैं शायद। आप रोक, अरे उसको जाना है भाई। हाँ। एक गांव को आपने 2 में बांट दिया, जब एक गांव को 2 में बांट देंगे, इट विल बी इम्पॉसिबल, राइट। एंड दैट इज वेयर वी हैव अ बिगेस्ट आई से काउंटर इंट्यूटिव जो हमें होना है, कि लोगों को ब्लेम करने से नहीं होगा, लोगों से पूछना होगा। आपने बहुत ही पूछा, नया जबरदस्त पर्सपेक्टिव मिला इस डिस्कशन से मुझे, क्योंकि अल्टीमेटली जनरली हम यही कंक्लूड कर देते हैं कि लॉज आर देयर, वही हमारी टैगलाइन है, राइट। इफ आप लड़िए उनसे। आप टैक्सी ड्राइवर को देखिए, वो अमेजन से खरीद करके सीट बेल्ट में घुसा देता है ब्लॉकर, वो पीछे से सीट बेल्ट डाल देगा। कहाँ तक आप उनको लड़िएगा? ये वार बना दिया हमने। 86,000 ट्रैफिक पुलिस और 1 बिलियन इंडियन अगर लड़ेंगे तो कौन जीतेगा? ये 1 बिलियन जीतेंगे, लेकिन खुद ही हार के मर जाते हैं। मर तो यही रहे। तो कहीं ना कहीं हमें ये पूरा नजरिया, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ मेरा एज ए स्टूडेंट, मुझे ऐसा लगता है वी हैव गॉट ऑल रॉन्ग। आप अगर चालान के लिए नहीं, आप अगर सड़क पे ना आई टू आई कांटेक्ट होता है, आंख से समझ जाते हैं हम लोग। करेक्ट। एक ड्राइवर, भाई ये बिहेवियर है, बिहेवियर इज नॉट पढ़ाई, करेक्ट। बिहेवियर इज मसल मेमोरी।
अगर मुझसे कोई बड़ा मिलता है तो हमें बचपन से ऐसा बिहेवियर है, मैं पैर छू के प्रणाम कर लेता हूँ। अब ये लिख दो कहीं पे, मेरे बच्चे नहीं करते। मेरे बच्चे नहीं करते, मैं करता हूँ। मैं अपने पापा से ऊंची आवाज में बात नहीं करूंगा, कहीं कर लिया तो बड़ा दुख होता है, जीवन में कभी 1-2 बार किया होगा। मेरी बेटी मुझे रोज रिडिकुल कर सकती है, ये तो बिहेवियर होता है। बिहेवियर इज ओवर टाइम, इट्स अ लर्न स्किल, इट इज नॉट इट्स अ रिसीवर प्रोसेस। हम मानते क्या है, तो बिहेवियर चूंकि मसल मेमोरी में है। उस दिन लोगों को बुरा लगा, मैंने डाला मोदी जी सीट बेल्ट नहीं पहने थे और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर सीट बेल्ट पहना हुआ था। हो सकता है गाड़ी रुकी भी हो, बट मैंने उस मौके का यूज करना चाहा इस टॉपिक को बताने के लिए। मैं मोदी जी की क्रिटिसाइज नहीं कर रहा था, मैंने बोला कितना अच्छा मौका मिला है, एक में है एक में नहीं है, और मैंने लाखों लोगों ने उसको पढ़ा। मैं केवल वहां ये बोल रहा था, यार हम इंडियंस के पास सीट बेल्ट पहनने की मसल मेमोरी नहीं है। इतना करेज कहाँ से आता है आपको पॉलिसी मेकर्स के साथ क्योंकि काम करते क्योंकि हैं? और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी में एक रोल है। जब मैं कन्याकुमारी से कश्मीर के लिए जब हम लोग चले थे ना पैदल, कोई सीईओ ये रिस्क नहीं लेगा। करेक्ट। मेरा एक एम्प्लॉय फुल टाइम चला था, मैं 500-550 किलोमीटर चला था और हजारों में लोग थे। 1 करोड़ स्टेप्स नाम था उसका। हम 131 करोड़ स्टेप्स डोनेशन मिला था। बाघा बॉर्डर पे 50,000 का स्टेडियम हमें दे दिया गया था। उस वहाँ का जो सीईओ है उसने मुझे एक तरह से क्या बोले, मुझे हौसला अफजाई की, मेरी पीठ थपथपाई, मुझे सम्मान किया। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने एक जिम्मेदारी हम सबको दी हुई है, जो ऑटोमोबाइल की लीडरशिप है उसको दी हुई है। तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम राइट चीज बोले। और ये गलती किसी की नहीं है, मैं यही तो बोल रहा हूँ कि उनको ब्लेम मत कीजिए, मोदी जी को या किसी और को। ये हमारे मसल मेमोरी में नहीं है, क्योंकि हम ऐसे नहीं अपने देखे हैं। हमने देखा है कि स्कूल जाते समय एक रिक्शा पे जिसपे 5 लोग बैठ सकते थे, स्कूल रिक्शा पे, या 6 बैठ सकते थे, उस पे 20 बैठते थे और कुछ नहीं होता था। तो हमें लगा 20 बैठ के कुछ नहीं होगा। अब ई रिक्शा पे भी 20 बैठते हैं और वो उलट जाता है, लोग मर जाते हैं। बट मर जाते तो इतना बड़ा देश है, हमारा रिस्क एपिटाइट बोलता है चलेगा यार, ओके इज ओके, हमारा काम हो जाएगा, हम निकल जाएंगे, मेरे साथ कुछ नहीं होगा। ये जो बिहेवियरल, ये मसल मेमोरी में है। मैं आपको बताऊं, छोड़िए आप बात करते हैं डिसिप्लिन करने के, आप खुद को डिसिप्लिन कर सकते हैं जो आपने सोचा वो। हमारे खुद के बॉडी में पॉलिटिक्स है। करेक्ट। मैं आपको बाहर की पॉलिटिक्स आप बोलते हैं ना, आप कैसे बोल लेते हो, मैं तो बोलता हूँ आपका मन कुछ बोलेगा, आपका मेमोरी कुछ बोलेगा, आपका इंटेलेक्ट कुछ बोलेगा, आपकी सांसें कुछ बोलेगी, आपका बॉडी कुछ बोलेगा। क्योंकि मैं टीचर हूँ आर्ट ऑफ लिविंग का, तो मुझे पता है कि हमारे शरीर के अंदर में 7 लेयर होते हैं। वी आर नॉट जस्ट, मैं रमाशंकर पांडे मेरा नाम, मैं एग्जिस्ट करता हूँ 7 लेयर में। बॉडी, ब्रेथ, माइंड, इंटेलेक्ट, मेमोरी, ईगो। आप मुझे रोक सकते हो, मैं हेलमेट हटा के दिखाता हूँ, मैं उड़ा के गाड़ी दिखाता हूँ। ईगो इज आवर एग्जिस्टेंस। ईगो को कौन सा क्लास में पढ़ा दोगे आप बिहेवियर की बात कर रहे हो। राइट। एंड देन फाइनली आपका जो सेल्फ है, अगर आपने मन से मान लिया, दैट इज सेल्फ अगर बोल दे तो पूरा बॉडी सबऑर्डिनेट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं बिहेवियर में जो हमें बदलाव लाना है, इनके 7 लेयर को अगर आपको ला के बदलाव सड़क पे चाहिए, तो यू हैव टू अपील टू देम इन अ वे दे आर। बिल्कुल। यंग लोगों का अलग, बूढ़े लोगों का अलग, वुमेन का अलग, सबका अलग अलग करना। राइट। एनफोर्समेंट और पेनल्टीज आई थिंक ये कम काम करेंगी, आपको बिहेवियर को समझना काम है। करेगी वहां जहां पे एनफोर्समेंट 0 टॉलरेंस पे है, डिटरेंस है जहां हमारे पास आई डोंट थिंक कि एज अ नेशन इतनी वर्कफोर्स और मसल पावर है। नहीं, कुछ शहर में है, आप देख लो। चंडीगढ़ में आपका एनफोर्समेंट ज्यादा है, तो वहां देखो, आप बोलो वहां यही लोग चंडीगढ़ जाते, अरे चंडीगढ़ आ गया। जयपुर में भी बहुत है। जहां भी ट्रैफिक पुलिस ज्यादा है, जहां एनफोर्समेंट जहां आप कर सकते हैं वहां कीजिए। मिक्स ऑफ एवरीथिंग आई थिंक यू नीड अ बैलेंस्ड अप्रोच। राइट। अभी मैं टॉपिक को थोड़ा सा डिविएट करता हूँ। अगेन अ लिटिल बिट ऑफ लिंक्ड विद द पॉलिसी। जो हमारा डेटा सेम रेफरेंस में ले रहा हूँ कि 70% से ऊपर ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं या फैटेलिटीज होती हैं जिसमें ड्राइवर हैज़ वैलिड लाइसेंस और बाकी के पास इधर नो लाइसेंस और लर्नर का लाइसेंस है। तो ये मतलब सीधा दिखाता है कि पीपल हु हैव द वैलिड लाइसेंस आल्सो डूइंग अ लॉट ऑफ एक्सीडेंट्स। बिल्कुल। तो अब क्या है कि ये ऑब्वियस सी बात है, एवरीबडी नोज इट कि क्या सिचुएशन थी पहले व्हेन टेक्नोलॉजी वाज नॉट देयर। मे बी अब विद द टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं इन द लाइसेंसिंग प्रोसेस। तो कितने लोगों को है जिनका ड्राइविंग टेस्ट होता है, कितने लोगों को ड्राइविंग आती है जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है।
तो क्या उस इकोसिस्टम में भी डू वी नीड टू हैव सम काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट, या वो ऑलरेडी ठीक स्टेज में है, या उसका भी, बिकॉज आप जैसे बोल रहे हैं ना, वी हैव टू अटैक इन ऑल द एरियाज. Yes. दिस इज आल्सो देखो वन ऑफ 5 पिलर हैं रोड सेफ्टी के, जो WHO के अनुसार से डिकेड ऑफ एक्शन जो हम लोग स्वीडन में जाके किए थे ना, वो पांचों इकट्ठा रिदम में चलना चाहिए. करेक्ट. आप केवल गाड़ी का कर देंगे और मैनेजमेंट लीडरशिप का नहीं करेंगे. उसका पहला पिलर है मैनेजमेंट एंड लीडरशिप. राइट. अब वो ईज वाला जमाना गया. मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी भी लोग ई पे ही बात कर रहे हैं. राइट. 5 पिलर हैं डिकेड ऑफ रोड से. अभी जो हम लोग न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन करने वाले हैं, एक हमने बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, 19 तारीख को हमारा वो इवेंट होने वाला है. वहाँ हम यही तो बात कर रहे हैं कि पांचों को रिदम में आना पड़ेगा. एक भी नहीं होगा तो 4. आपने थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट पढ़ी हुई है ना? क्या बोलता है भाई? बॉटल का जो नेक है, कितना भी चौड़ा कर लो नीचे, पानी तो उतना ही निकलेगा. पानी उतना ही तो अगर आपके पांचों में एक बॉटल नेक हो जाता है तो आपको उसको तो लाना ही पड़ेगा. गाड़ी बना लिया वर्ल्ड क्लास, और ये आपने जो कहा था बिहेवियर इन्फोर्समेंट इस पर नहीं होगा, तो लाइसेंस. अब एक चीज और आपका काउंटर इंट्यूटिव ये समझना पड़ेगा. लाइसेंस आपको बंदूक चलाने का भी मिलता है. मिलता है? बिल्कुल. किस पे बंदूक चलाना है उसका लाइसेंस मिलता है? नहीं मिलता है. गाड़ी सेफ चलाने का लाइसेंस नहीं है वो. प्लीज अंडरस्टैंड दिस. वो गाड़ी चलाने का लाइसेंस है. राइट. राइट. कि गाड़ी चलाने. फंडामेंटल समझिए आप. मैं अगेन आई एम गोइंग बैक लाइक ए स्टूडेंट ऑफ सम ऑफ माय प्रोफेसर्स. गाड़ी चलाने की लाइसेंस मिल गई, डिफेंसिव ड्राइविंग या राइट ऑफ वे उसकी लाइसेंस नहीं मिली है. वो ऐसा मानना है कि वो लाइसेंस जब आप लिए तो आप रोड सेफ्टी के बारे में पढ़ के गए थे, लेकिन आप उसको यूज करेंगे, उसका लाइसेंस नहीं मिला है. नोबडी कैन टेस्ट यू योर इंटेंशन, योर बिहेवियर. जब आप टेस्ट देने जाएंगे तो आप अगर नॉर्मली सीट बेल्ट नहीं पहनते हैं तो टेस्ट देते समय क्या सीट बेल्ट नहीं पहनेंगे? बिल्कुल. तो लाइसेंस मिला हुआ है. इट्स लाइक इतना किलोमीटर पर लीटर इन लेबोरेटरी कंडीशन. सड़क पे आप क्या करेंगे ये तो आपका है. तो सेफ ड्राइविंग का लाइसेंस नहीं मिलता है, ड्राइविंग का लाइसेंस मिलता है. सेफ ड्राइविंग के लिए आपको और भी बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी. ये पांचों हमारे जो पिलर हैं इनको ऊपर लिफ्ट करना पड़ेगा. आप उसमें मत जाइए. टेक्नोलॉजी है, आज ऑटोमेटिक लाइसेंसिंग हो रही है. ये करप्शन रोकने के लिए है. अलग प्रॉब्लम है वो. राइट. दैट इज अ डिफरेंट प्रॉब्लम. अभी मारुति कितना वो दे रहा है. आपने बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव दिया कि ड्राइविंग लाइसेंस तो ड्राइव करने का है, वो सेफ ड्राइविंग का तो लाइसेंस नहीं है. नोबडी कैन गिव यू सेफ ड्राइविंग. फैक्ट्री में देखिए, फैक्ट्री में हम लोग बोलते हैं ये मशीन ये ऑपरेटर चला सकता है. यस. वो सेफ चलाएगा. उसका वो तो दैट इज ही हैज टू क्वालिफाई फॉर दैट सेफ्टी. और उसका एक दिन का लाइसेंस नहीं होगा, वो तो रिकॉर्ड होगा मंथ्स टुगेदर. आखिर हमारे फैक्ट्री के अंदर में जो एक्सीडेंट होता था वो कैसे कम हुआ? आप खुद सोचिए. कम हुआ है ना? कम हुआ है पहले के मुकाबले. मेरे पुरानी हेला फैक्ट्री में मुझे याद है हाथ कट गए थे लोगों के जब मैं ज्वाइन किया था नया. सारे प्रेस को हम लोगों ने 2 ऑपरेट किया, फिर 4 कर दिया, पैर भी रखो. और फिर मतलब आपके पास, आप इतनी बार सुनते होंगे हमारी इंडस्ट्री में, मैं तो एक्मा से बिलोंग करता हूँ, मैं वहाँ ईसी मेंबर हूँ, स्किलिंग का चेयरमैन हूँ. वहाँ पे हम लोग पोका योका की बात करते हैं. आप किसी से पूछिए, लेमैन से. आज इतने लोग हैं, ड्राइविंग लाइसेंस तो छोड़िए, आपको मोबाइल आपके पास है. आप मोबाइल के अंदर में कभी सिम कार्ड गलत इंसर्ट कर पाए? क्यों? डिजाइन, पोका योका डिजाइन. उसके अंदर बस एक कट है, वो कट इंश्योर कर देता है कि सब सही लगा, नहीं तो घुसेगा ही नहीं. तो इंसान गलती से भी गलती ना करे, इसको सिस्टम अप्रोच बोलते हैं. यही हमें मुझे वही लग रहा है जो स्टूडेंट की वहां हम गलत जा रहे हैं कि इंसान गलती करेगा. हम ये इंसान को गाय भैंस की तरह अगर सोचे, या तो सच में गाय भैंस की तरह ट्रीट करें. राइट. तो आपके पास इतना पावर होना चाहिए कि वो गाय भैंस है और हम इंसान हैं. तो इंसानों के बीच में अगर हम ये बना सकें कि हमारे पास डंडा है इतना, हमारे पास बैरिकेडेड इतने हैं, हम लेन एकदम फिक्स कर दें. और जैसे हम लोग करते हैं ना कुंभ मेला में, हम कैसे लोगों को डिसिप्लिन करते हैं? हम बल्लियां लगा देते हैं. बिल्कुल होता है ना, करोड़ों लोगों को. तो सड़क पे क्यों नहीं कर सकते? यहाँ भी कर सकते हैं. तो या तो इन्फोर्स उस लेवल का करें, या नहीं तो भी मानना पड़ेगा इंसान है, गलती होगा, गलती करेगा. आपकी वाइफ बोलती है मैं सीट बेल्ट नहीं पहनूंगी, ये इंसानियत है. इंसान इम्परफेक्ट होता है. अगर एआई गलती करेगा तो आपको गुस्सा आ जाएगा, लेकिन आपका
सबऑर्डिनेट गलती करेगा तब भी आप गुस्सा करेंगे, आपका बेटा गलती करेगा तो बोलेंगे इसको समझाओ थोड़ा, आपका बहुत अटूट दोस्त है वो गलती करेगा तो बर्दाश्त कर, चल यार चलता है। तो इंसान दैट्स इम्परफेक्शन। तो कहीं ना कहीं इंसान गलती से भी गलती नहीं करे, उसके लिए सिस्टम अप्रोच लेना पड़ेगा, डिजाइन, सिस्टम डिजाइन एंड मैनेजमेंट डिजाइन, उस पे काम करना पड़ेगा। बिकॉज वी आर प्रिविलेज पीपल। आम जनता तो बेचारे लगे हुए हैं रोज सुबह शाम अपने रोजी रोटी में, वो नहीं कर सकते। अब मान के चलो जैसे फैक्ट्री में लोग बोलते हैं सुपरवाइजर की जिम्मेदारी है, एमडी की जिम्मेदारी है, सीईओ की जिम्मेदारी है, एज ए लीडर मैं लेता था अपनी जिम्मेदारी सबसे पहले, वैसे ही हमें टॉप से नीचे जाना पड़ेगा कि टॉप में जो लोग हैं उनको बदलना पड़ेगा, ट्रैफिक डिजाइन से लेके मैनेजमेंट से लेकर के, और मानना पड़ेगा कि वो गलतियां करेंगे और उनको मौका नहीं देना पड़ेगा। आप एक सेपरेट लेन बना दीजिए टू व्हीलर का हाईवे पे, देखिए टू व्हीलर की डेथ कम हो जाएगी। आप टू व्हीलर को बोलिए कि भाई उसका इंजन का स्पीड हम इतना सिटी एरिया में कम कर देते हैं, आखिर है ही हमारे पास ना बैटरी ऑपरेटर, हमने कम कर दिया तो उनके एक्सीडेंट कम हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बिहेवियर हैज टू बी ड्रिवन बाय डिजाइन। यस। क्या ये डिजाइन इज द मेन रीजन व्हाई रूरल एरियाज में एक्सीडेंट्स बहुत। मैं बोलने ही वाला था जब आप बोल रहे थे। आप ये देखो रूरल एरिया में जहां भी देखो एक्सीडेंट होता क्यों है, फिजिक्स केयर भी नहीं है। फिजिक्स बोलता है कि जहां कॉन्फ्लिक्ट होगा वहां एक्सीडेंट होगा। अगर इंडिया का कोई कॉन्फ्लिक्ट यूएस के साथ नहीं है और अगर रसिया ट्रैफिक में आ जाता है दोनों के बीच में, तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। ठीक उसी तरीके से फिजिक्स का कॉन्फ्लिक्ट होता है कि फिजिकली दो चीज एक जगह पे ना आए। तो कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट आप जाके देखो हमारे चौराहों पे कितने कॉन्फ्लिक्ट, हम तो इतना WRI के साथ देखा है, रिसर्च निकल के IIT दिल्ली में देखा है, IIT चेन्नई में देखा है, कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट हर चौराहे पे भरे हुए हैं, हर सड़क पे भरा हुआ है। वो तो बच जाता है फिर भी लोगों के इंटेलिजेंस से। नहीं कैसे बच रहे हैं। हाँ, एक एग्जांपल देता हूँ, एक्सप्रेसवे का एग्जांपल देता हूँ, या हाई मतलब एक्सप्रेसवे ही मान लो आप। अब क्या है कि एक्सप्रेसवे पे आपको नीचे उतरने के लिए एक जगह है और उधर से भी नीचे उतरने के लिए, बीच से आपको क्रॉस करना है। अब जब व्हेन यू क्रॉस द रोड ना, उधर वाला दिखता नहीं है, उसको कैसे पता कि कोई नीचे से आ रहा है, मतलब ही और शी। बाय डिजाइन आप सही बोले, बाय डिजाइन हमें इतने कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट बना दिए हैं और आप एक साल में सड़क तो तोड़ नहीं सकते सबरा। तो कहीं ना कहीं हमें इसका एक वाया मीडिया निकालना पड़ेगा टेक्नोलॉजी से कि हम कैसे। मैं बोलता हूं कि आप लोगों को ब्लेम मत करो, आप लोगों को असिस्ट करो, अलर्ट करो। एडास भी यही बोलता है, अलर्ट एंड असिस्ट। देखो रुको बच्चों में, आखिर यही ड्राइवर पे आप ब्लेम करके आपको कुछ मिल नहीं रहा है। अब इनको आप ट्रस्ट करना शुरू करो और इनको ज्यादा सुविधा दो। जैसे हम लोग टोयोटा सिस्टम में बोलते हैं कि ओवरवेलमिंग नहीं होना चाहिए। ओवरवेलमिंग है यार यहाँ पे। मैं खुद जब गाड़ी चलाता हूँ, आसान नहीं इंडिया में गाड़ी चलाना। सिंगापुर में चलाना आसान था, मैं यूरोप में टेस्ला चलाया पहली बार, आसान था। यहाँ पे गाड़ी चलाना आसान नहीं है। तो टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम बोलता है अगर कोई चीज ओवरवेलमिंग है तो उसको आसान करो, तो डिजाइन से आसान करो, पोका योका बनाओ। हमने फैक्ट्री में वही किया है, यहाँ भी हमें वही करना पड़ेगा, बट इंडिया स्केल पे करना पड़ेगा। सो बिहेवियर हैज टू, तभी आप गांव में देखो, गांव में डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्यादा है। कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट में क्या होता है कि जितना आप रेगुलेट कर देंगे कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट को, उतना आपका एक्सीडेंट या अपना प्रोबेबिलिटी, चांसेस ऑफ टकराहट कम होगी। जैसे ट्रेन है, ट्रेन को आपने एकदम अलग से लेन दे दिया, दिया ना, वहां आप कैसे मैनेज करते हैं? आपको पता है ट्रेन के ऊपर कितना खर्च होता है सेफ्टी पे? प्रायोरिटी कहाँ है यार? हम 400 करोड़ की बात कर रहे हैं, लाखों करोड़ के रोड इंडस्ट्री में, और वहाँ ट्रेन का आप सेफ्टी बजट देखिए क्या है, ह्यूज डिफरेंस। जबकि वहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम कम है। क्यों? एक ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाए, देखिए देश में क्या होता है। बिल्कुल, यहाँ तो रोज लोग मर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सिटीजन को भी मांगना पड़ेगा अपनी इस राइट को कि मुझे सेफ डिजाइन चाहिए। तो मेरे न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन जो हम लोग करने वाले हैं 19 तारीख को IIT दिल्ली में, वहाँ मैंने ये बड़ा बदलाव एक किया है कि केवल एजुकेट मत करो भाई जनता को ये एजुकेट करो, सेंसिटाइज करो कि वो सेफ डिजाइन मांगे अपने लोकल कॉर्पोरेटर से, लोकल मंत्री से, लोकल लोकल म्यूनिसिपैलिटी से कि भाई मुझे सेफ डिजाइन चाहिए। मैं द्वारका में रहता हूँ, मुझे रोज पता है यहाँ मेरा कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट आता है, इसको ठीक करो। और ये पता है हम लोग क्या गलती कर रहे हैं, ये आप भी कर रहे होंगे, मैं भी करता था, अब नहीं करता हूँ। तभी आप बोलते हैं कि आप क्यों बोल देते हो, मैंने क्यों मोदी जी की वो फोटो डाली। हम सब लोग ये सोचते हैं कि हम अपने सिक्योर्ड सोसाइटी में रहते हैं, सिक्योर्ड ऑफिस में रहते हैं, हमें कुछ नहीं होगा। करेक्ट। आपने देखा कैसे 51 MP मर चुके हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। करेक्ट। साइरस मिस्त्री जी मर चुके हैं।
भाई आप कुछ भी बोल लो, पब्लिक लाइफ से आपका लेना देना है। 100%। हम लोग गलती क्या कर रहे हैं, हम लोग मिडिल क्लास उस समय के, मम्मी पापा ने बोला खूब मेहनत करो, मेहनत से तुम बड़े बनोगे। ठीक है, मेहनत कर रहे हैं, रुकना कहाँ है बताया नहीं, अब मेहनत किए जा रहे हैं। तो सामने कोई प्रॉब्लम देखी तो हम क्या कर रहे हैं, हर पब्लिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं प्राइवेटली। भाई रोड क्रॉस नहीं कर सकता बच्चा, तो एक गाड़ी लो, एक ड्राइवर लो, वो यू टर्न लेके बच्चे को स्कूल छोड़ेगा। हम ये किसी को नहीं बोले, एक हम कंप्लेन तक नहीं लिखते हैं मंत्रालय को। बिल्कुल। मैं तो था मंत्रालय में सोशल जस्टिस में, हम लोग का सीपी ग्राम करके मीटिंग होता था, हर वीक में हमारा सीनियर अफसर मीटिंग होता था, जब मैं इनसाइडर था गवर्नमेंट का। वहाँ कोई कंप्लेन चिट्ठी नहीं लिखता, केवल जो लोग जनता के वो हैं, लीडर हैं, वही लिखते हैं। आपने लिखा कभी कंप्लेन? कभी नहीं लिखा, क्योंकि आपको भरोसा ही नहीं है सिस्टम पे। हम भी तो पब्लिक प्रॉब्लम को प्राइवेटली सॉल्व कर, सोचा ही नहीं कि लिख भी सकते। सोचिए, मैं तो जगा रहा हूँ आपको, पब्लिक प्रॉब्लम को आप प्राइवेटली सॉल्व कर रहे हैं। पब्लिक प्रॉब्लम को पब्लिकली ही सॉल्व कर सकते हैं आप। राइट, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग दैट जनता को जागरूक होना पड़ेगा और उनको मांगना पड़ेगा। भाई मेरी गाड़ी में तुमने मेरा 50,000 लगवा दिया ज्यादा, राइट, क्या गारंटी है कि मैं नहीं, मेरा एक्सीडेंट नहीं होगा, फैटिलिटी नहीं होगी? जो आपका काम है उसके लिए तो मुझे मांगना चाहिए। मुझे फुट ओवर ब्रिज चाहिए तो चाहिए। करेक्ट। जब मैं वहां जाता था, मेरी ऑफिस उद्योग बिहार में होती थी, गुड़गांव में, और वहां पे सब ये वर्कर जाते थे सुबह सुबह, लाखों वर्कर चलते हैं वहां पे, और गाड़ी और वर्कर ऐसे चल रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट, और वहां पे एक फुट ओवर ब्रिज नहीं है। मैंने इतनी चिट्ठी लिखी, आरटीआई डाला, नहीं हुआ। फिर मैंने डिसाइड किया हम सब मिलके बनाएंगे। जब हमने परमिशन के लिए दिया कि हमें बनाना है, लग गई फुट ओवर ब्रिज। होता है, मैं बता रहा हूँ, होता है। मेरा डेराबेसी में एक्सीडेंट होता था सामने, वो जो मेरी फैक्ट्री थी वहां पे चंडीगढ़ में, लोग आते थे, सडनली वो रिहायशी इलाका आता है, वो स्लो नहीं हो पाते थे, वॉल्वो से एक आदमी मर गया कार से, हमारा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई था। हमें ऐसा लगता है कि ये समाज, सरकार, बाजार जब तक इकट्ठा नहीं आएंगे, ये प्रॉब्लम एक का नहीं है। We have to come together. 100% सर। अब कुछ आउटलायर्स की बात करते हैं, क्योंकि आपने बोला ना कि लोगों को ब्लेम करने से काम नहीं चलेगा, बट कुछ इंसिडेंट्स या एक्सीडेंट्स ऐसे हैं जिनमें आई थिंक हमें ब्लेम करके और हार्श पनिशमेंट भी देना चाहिए। पनिशमेंट एज ए सेड सर, मैं उसको आउटलायर बोल रहा हूँ। फॉर एग्जांपल वो जो पुणे में पोर्शे का एक्सीडेंट हुआ, वो माइनर था। इसमें सोचना क्या है, पुणे से मैं जहाँ टहलता था वहीं पे एक्सीडेंट हुआ। जितने रीजंस हैं, ओवर स्पीडिंग, ड्रिंक एंड ड्राइव, सब उसमें था, रॉन्ग साइड ड्राइविंग, बिल्कुल। तो इस तरह के। अभी मैं विटनेस तो नहीं था, लेकिन जिस जगह पे मैं रोज टहलता था, मैं जहाँ दौड़ता था सुबह सुबह, मैं कल्याणी नगर में रहता था पुणे में, एंड मैं जॉगर्स पार्क में जाता था, मुझे मतलब हिला दिया इंसिडेंट मुझे। राइट। और जब मैं इसकी सारी पीछे की स्टोरी देखी, लोगों का ये देखा, ये बात सच है कि कुछ लोग लॉ समझते हैं कि मैं लॉ के ऊपर हूँ। अच्छा, ये पेरेंट्स अपने बच्चों को अलाउ कैसे कर देते हैं सर, माइनर्स को पोर्शे लेके? हम ऐसे पेरेंट्स को सोसाइटी में बाइकआउट कर देना चाहिए। उनकी पीठ नहीं थकता, मेरा बेटा तो चलाता है। हम कहीं ना कहीं नैरेटिव गलत बनाते हैं। आपने वो धृतराष्ट्र का बिल्कुल, बच्चे को सामने बिठाया हुआ है और गाड़ी चला रहा है और लोग ताली बजा रहे हैं, उसको लाइक भी मिल रहा है। जितना आप रिस्क लें उतना लाइक मिलेगा, तो आप और वैसा ही करेंगे। राइट। तो कहीं ना कहीं मैं वही तो बोल रहा हूँ कि जनता को देख के मूक दर्शक नहीं बनना है। धृतराष्ट्र केवल वो नहीं है जो बिठा के चला रहा था, हम भी हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ, टोको रोको, अगर हिम्मत नहीं है तो 4 आदमी को इकट्ठा करके टोको, क्योंकि रोड रेज भी हो सकता है। लेकिन आज मैं फैक्ट्री में भी यही करता था। फैक्ट्री में अगर आप बाईपास करते हैं, भाई आप तो बहुत लॉयल हैं कंपनी के, आप रेज ही मत करो, कोई प्रॉब्लम एस्केलेट ही मत करो। यस, तो सिस्टम कभी सुधरेगा नहीं। आप डिलीवरी करते रहो कस्टमर को, खुद सब कोई, लेकिन होगा क्या, सिस्टमेटिक प्रॉब्लम रह जाएगी। यही हो रहा है। मुझे रोजी रोटी कमानी है, तो मैं सड़क पे क्यों सॉल्व करूं चीजों को? मैं तो जाऊंगा। मेरे पापा बोलते हैं, मेरे पापा डज नॉट बिलीव इन द वे आई बिलीव। वो बोलते हैं, बेटा आप चलोगे, रास्ते पे पूरा कचरा और होगा, पॉटी की होगी सब जगह, तुम सारा पॉटी उठाने चलोगे तो तुम अपना ऑफिस नहीं पहुंच पाओगे, तुम काम नहीं कर पाओगे। मिडिल क्लास साइकोलॉजी। और पापा से मेरा हमेशा इस पे डिफरेंस ओपिनियन है। मतलब पापा मेरे बदलने से, मेरा बिलीव है, लेट्स बी दी चेंज। जब हम बदलेंगे तो देश बदलेगा, ये मेरा बिलीव है। और मैंने देखा है, मैं बड़ा सोचता हूँ और मैंने बड़ा किया है। मैं इंडिया में प्रोफेशनल एमडी के रूप में इंडिया का यंगेस्ट एवर मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर ए लिस्टेड एमएनसी बना था। मैं केवल बिलीव करता था ऐसा हो सकता है।
लोग मुझे डराते भी थे, यू विल बर्न। आज मैं मल्टी गिग वर्किंग में हूँ, बिल्कुल। मैंने एमडी की लाइफ जी ली, मैं कॉर्पोरेट निर्वाणा में हूँ, करेक्ट। सरकार में काम कर चुका हूँ। हाँ, लोग इस एज पे भी, इस टाइम पे भी टारगेट नहीं करते हैं, जो आपने आज के कितने तो साल मैं पहले यही कर तो बोलता लिया। हूँ, सोच बदलनी पड़ेगी हमें। तो जब हम बदलेंगे तो देश बदलेगा। पापा हमेशा बोले, अरे काम कम करो, काम कम करो, तुम्हारी तब, क्योंकि पापा आउट ऑफ लव बोल रहे हैं, उनको दिखता है मैं 18 घंटे काम करता हूँ, करेक्ट। फिर भी नहीं थकता हूँ, क्योंकि मैं पैशन से काम करता हूँ। तो मेरे घर वाले तो बोलेंगे भाई आप, बट वो आउट ऑफ लव बोल रहे हैं। पर मुझे समझना चाहिए ना कि मेरे बदलाव लाने से अगर होता है, हम 1 करोड़ जो स्टेप सोचे थे वहां पे कन्याकुमारी से कश्मीर, हम 3 आदमी ने सोचा था 36 लाख स्टेप है, 1 करोड़ हो जाएगा। हमें क्या पता था 131 करोड़ हो जाएगा। दर्जनों मंत्री हमारे साथ आए, सैकड़ों सीईओज हमारे साथ आए। यही गुड़गांव में ताऊ देवीलाल स्टेडियम में 8,000 लोग थे। हर जगह वर्ली सी फेस पे 7-8 हजार लोग थे। हर चंडीगढ़ में 5-6 हजार लोग थे, सुखना लेक पे। बिलीव मी, हमें कहीं ना कहीं पब्लिक प्रॉब्लम को पब्लिकली सॉल्व करने के लिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम आगे आए, डिमांड करें हम। और ऐसे पेरेंट्स को हम देखो, हम नहीं टोकेंगे, कौन टोकेगा? सरकार के मतलब मंत्री जी के पास कितने आंख और कान और नाक हैं? करेक्ट। हमें करना पड़ेगा। तो ऐसे पेरेंट्स को जो बिल्कुल सामने दिख रहा है गलत हो रहा है, जब आप छोटी सी गलती, मैंने नावेद से इतना अच्छा स्टेटमेंट दिलवाया है, आप वीडियो में देखना। वो बोलता है, मैं हाथ जोड़ के आप लोगों को बोल रहा हूँ, ये मेरी नावेद की रेडियो की आवाज मत समझना, ये मैं आपको मिन्नत कर रहा हूँ कि आपकी छोटी सी लापरवाही कब किसी का जान ले ले। पूरा शीर्षक उसका था, दोषी कौन है, जिम्मेदार कौन है, किसे सजा दी जाए। बोलता है कि आप दोषी हो ना हो, आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, भागीदार हो, क्योंकि आपने थोड़ी सी लापरवाही की, दूसरा देख के ज्यादा किया, तीसरा उससे ज्यादा किया, आप उस कमजोर कड़ी के हिस्से हो। तो वहां जो एक्सीडेंट हुआ कल्याणी नगर में, अगर उसको पहले किसी ने टोका होता, इतने लोग थे चेन में, रेस्टोरेंट में कोई होगा, निकलते समय कोई होगा, ना गार्ड टोका, ना कोई बाय स्टैंडर्ड, कोई नहीं। टोको, रोको, और नहीं तो एनफोर्समेंट करके ठोको। It has to be. Very much, sir. Punishment also is needed. Right. Otherwise, जब हम बदलेंगे तो देश बदलेगा। I think ये discussion we can continue for many hours. Thank you so much. But we have to conclude given the time restrictions. Last में मैं आपसे 3 quick recommendations मांगता हूँ, which maybe in general public और policy makers जो हम implement करें और कुछ हमें much better results मिले in terms of road safety. I will say first thing is, कहीं ना कहीं जो लीडरशिप प्रायोरिटी है हमारे देश की, कैसे आएगी, इस पे हम सबको सोचना पड़ेगा। और इसमें सबका रोल है, कॉर्पोरेट्स का रोल है, समाज, सरकार, बाजार, तीनों का रोल है। सो पहली चीज तो इट्स अर्जेंट, स्केल पे करना है और मिल के करना है। तो पहली चीज है अलाइनमेंट। वी नीड अलाइनमेंट। आप 4 व्हीलर को अच्छा बना दो, 2 व्हीलर को ना बनाओ, क्या 2 व्हीलर ठोक देगा 4 व्हीलर को? आपको पता है 2 व्हीलर से 4 व्हीलर मरते हैं। हाँ, बिल्कुल, आई नो। अगर ट्रक का पूरा कंटेनर गिर गया वॉल्वो गाड़ी पे, तो वॉल्वो गाड़ी को कितना सेफ बना दोगे आप? सो अलाइनमेंट, लेट अस वर्क इन रिदम। उसके लिए ट्रांसपेरेंसी चाहिए, उसके लिए कोई ऐसा सिस्टम चाहिए कि हमें पता चले कि प्रतीश क्या कर रहा है, पांडे जी क्या कर रहे हैं, जैसे आप ये पॉडकास्ट कर रहे हो। करेक्ट। लोग इसके ऊपर बात करें, केवल ये नहीं कि ऑप्टिक्स के लिए रोड सेफ्टी पेज 3 टॉपिक बना दिया बहुत लोगों ने, धंधा बना दिया। बिल्कुल यार, अगर कुछ बदलाव लाना है तो ट्रांसपेरेंसी लाके, अकाउंटेबिलिटी लेके। तो सबसे पहला अलाइनमेंट, दूसरा अकाउंटेबिलिटी। जो कर रहा है ना, आप वही करो, अकाउंटेबिलिटी लाओ। अगर मैं स्टैंडर्ड कमेटी में बैठता हूं तो मैं वही बोलूंगा जो देश के लिए सही है। मैं वो नहीं बोलूंगा जो ये कंपनी चाहे और वो कंपनी चाहे। जो देश के लिए सही है वो सही है। राइट। तो थोड़ा सा उठ करके हमें अकाउंटेबिलिटी लानी पड़ेगी। ये जो मीडिया का भी रोल है ना, मुझे लगता है मीडिया ऑल्सो हैव टू ट्रेन देमसेल्फ कि ये उड़ती खबर ना करके उनको थोड़ा साइंटिफिकली बताएं कि साइंटिफिकली आप किसी पर्सन के, किसी पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए। मीडिया को कहीं ना कहीं रोड सेफ्टी में कम से, देयर इज अ वेरी गुड गाइडलाइन ऑफ मीडिया, WHO का है मीडिया का। हमने एक बड़ा अच्छा फेलोशिप शुरू किया है, मीडिया फेलोशिप। उसके अंदर हमने कई बच्चों को तैयार किया है। दीपक दास जी जो टाइम्स ऑफ इंडिया के हैं, वो उनको ट्रेन कर रहे हैं। हमने अवार्ड किया है इसके ऊपर। हमारे एक बड़े अच्छे पत्रकार थे ऑटोटेक रिव्यू के, पता नहीं आपको याद होगा, दीपांशु देश शर्मा, जो नहीं रहे, उनके मेमोरियल में हमने एक रोड सेफ्टी मीडिया फेलोशिप अवार्ड शुरू किया है, जो दीपक दास जी को मिला सबसे पहला। और कहीं ना कहीं ये जब
अकाउंटेबिलिटी, पहला मैंने आपको बताया अलाइनमेंट। अलाइनमेंट अकाउंटेबिलिटी के लिए सही तरीके से हमें अगर इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा तो नहीं चले, क्योंकि ये स्केल वाली, ये मैक्रो प्रॉब्लम है, माइक्रो नहीं है। हम इस मैक्रो को माइक्रो में कन्वर्ट कर देते हैं कि ये गलत चला रहा था वो, अरे डोंट डिविएट। जो टफ, असल में बिल्ली की गले में अगर घंटी बांधना है तो ये बड़े टॉपिक पे बांधो, करेक्ट, छोटे टॉपिक तो इतने साल से सुन ही रहे हैं। राइट। गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो। आपको लगता है आप गुस्सा में, और कोई बोले गुस्सा मत करो, आप गुस्सा नहीं करोगे, आप ज्यादा करोगे, क्योंकि आपके बॉडी में मसल मेमोरी नहीं आई है उसकी। तो मसल मेमोरी डिजाइन से ही सॉल्व होगा और उसके बाद गलतियां नहीं होगी। स्कूल्स में इनफैक्ट एजुकेशन भी आ गया। मैं फिकी में जैसे चेयरमैन हूँ रोड सेफ्टी का, हमने काफी काम किया हुआ है। तो आपने जो 3 चीज बोली, हमें सबको मिल के चलना है। इसमें क्या कॉम्पिटिशन? अगर मारुति कुछ कर रहा है तो टाटा नहीं कर, टाटा भी करे, मारुति भी करे, होंडा भी करे, टोयोटा भी करे, सब मिल के करो भाई। तो मेरा अलाइनमेंट, आप देखो कि आप कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे हो कि आप अलाइन नहीं हो, कहीं ऐसा तो नहीं कर, अलग चले, अलग मत चलो। रोड सेफ्टी में एक्मा, सियाम, फिकी, एएसडीसी, मेरे पास कई प्लेटफॉर्म है। अभी जो ये आपने साइन किया होगा, प्लेज आपने देखा होगा, सब है। हाँ, सब है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब सब साथ होते हैं। तो पहला अलाइनमेंट, दूसरा अकाउंटेबिलिटी, तीसरा जो मीडिया अकाउंटेबिलिटी है, मीडिया को बहुत बड़ा रोल अदा करना है। थोड़ा टेक्निकली अपने को, जिसको बोलते हैं ना, इट्स अ साइंस, इट्स नॉट ए एक्ट ऑफ गॉड। तो साइंटिफिक हो जाए और क्रैश रिसर्च पे जो कॉज एंड इफेक्ट है, तो मीडिया को भी कॉज एंड इफेक्ट पे ध्यान देना चाहिए। विद दिस 3 आई थिंक वी शुड बी एबल टू मूव। Nice, sir. Thank I you. think the very nice way to close the session. Thank you very much for joining, because I think I can keep on discussing with sir for hours and hours. We will reserve time maybe for some future, and I hope you consider coming. Always welcome in for future. road safety, definitely. And I can definitely tell all your audience as well that actually charity begins at home. Let's be the change. जब हम बदलेंगे तो देश बदलेगा। हम सब कहीं ना कहीं लीडर हैं, हम सब कहीं ना कहीं एक सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस में हैं। यूज आवर इन्फ्लुएंस फॉर दिस रेस्पॉन्सिबल एक्ट ऑफ सेविंग लाइफ। थैंक यू सो मच।